Okay, there are still people joining us. I know it's 9:04. तो तब तक मैं ये एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, and that is कि how many of you have already used ChatGPT? Okay, good, good. Some of you are already using it. Some of them, oh, okay, good, 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 very good. यानी कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है. So what we need to be here establishing here is, yes, more, some of you have used it, some of you are still अच्छा little bit आपने यूज किया है, किसी को कंफ्यूजन है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है. Okay, so we will be हमारी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे ये है कि we need to understand what ChatGPT is all about and उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, and furthermore इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि अगर हम इसको एजुकेशन में यूज कर रहे हैं, करें या ना करें, कितना करें कितना ना करें, कितनी परमिशन मिलनी चाहिए कितनी नहीं मिलनी चाहिए. बिकॉज हर जो चीज एक न्यू आती है, जाहिर है उसके साथ उसके मसले भी आते हैं, इम्प्लीकेशंस भी आती हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑन सोशल मीडिया एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन सोशल मीडिया कि पीपल आर सेइंग यूज इट, सम पीपल आर सेइंग डोंट यूज इट. I'm not going to say anything actually. यहाँ पे हर एक को अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करनी होगी, ठीक है. सेकेंडली, you have to make sure that if there's somebody who cannot, am I audible, clearly audible? अगर अभी भी किसी को सुनने के इश्यूज हो रहे हैं तो मुझे बताइएगा प्लीज. There is one person who's saying that they cannot hear. Audible, clearly audible. Okay, so those who cannot hear me clearly, you need to reconnect. Thank you so much. Thank you so much. अगर एक को भी आवाज क्लियर आ रही है तो इसका मतलब है कि मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर जिसको नहीं आवाज आ रही है, you need to check on your own end. ठीक है? Thank you so much. Thank you so much. Okay. The point over here is that with every application, there are some implications. ठीक है ना? So let's start. We are not going to take too long to start. So let's get started because people will keep on joining. We have the recording. We are going to upload and we will share it with you. Okay. So as you can see it on my screen, कि हमें ChatGPT के बारे में क्या जानना है. So if there's any one question that you want to put forward and give me some time to respond to that. What is that one question in your mind? कुछ लोग कह रहे कि हमने यूज किया है, हमारे दिमाग में ये है, ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है या ये चीज समझ नहीं आ रही है. Any question that is there in your mind, please start writing your question. How to give prompts in ChatGPT? Okay, very good. Okay, prompts कैसे देने हैं? Authenticity, very good, Amreen. Authenticity of ChatGPT, ये भी हम डिस्कस करेंगे. Prompts कैसे देने, ये भी हम वर्किंग करेंगे. Okay, some people are doing it first time, perfectly fine. What are the prompts? What do we need to write? Right, good. Good. Any question, any other question? More efficient questions, how to ask more efficient questions, probably. How to get a bit long response, how to get complete answers. Very good, very good. कि long responses हम कैसे generate करें, complete answers हम किस तरह से generate करें. कभी कभार वो होता है कि हम जो है वो पूछते हैं और वो बस एक पैराग्राफ में या एक छोटे से उसमें लिख के खत्म कर देता है. So how to go about having a longer responses, how to write research articles that are more than 500-600 word limit. Very good. Research articles कैसे लिखे जा सकते हैं. Good. ये 500-600 words के. How to install. Nadia, my response to you is कि don't install it, use it online. क्योंकि installation में आपके पास only 8 to 10 responses की limit होती है, क्योंकि ये free नहीं है. ठीक है ना? तो जितना फ्री है वो ऑनलाइन है. अगर आप इंस्टॉल करोगे तो यू विल बी एबल टू यूज इट ओनली फॉर 10 टाइम्स. यानी कि आपने 10 सवाल पूछे, उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी और वो बाय बाय कर देगा आपको. It gives incomplete. अच्छा, if you feel that it gives a lot of incomplete answers, very good. Okay. Okay, some of you are using it completely for the first time, so you need to know exactly वो चलता कैसे. Very good. So we'll go about that as well. Completely new, a layman person, if it is using for the first time, how to go about it. We are going to do that as well. Okay.
So there are not much questions. I can see that there are very limited questions. Let's begin then. Okay. First of all, हम ये establish करते हैं कि हम ChatGPT, हमारे पास हम टीचर्स हैं, वी आर ऑल टीचर्स, हमारे पास बहुत सारे काम है करने के लिए. जैसे किसी ने कहा हम आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं, जनरलाइज आंसर्स, अगर बीना को लगता है कि बहुत जनरलाइज आंसर्स आ सकते हैं, डू इट रियली. हाँ, एक और मैंने क्वेश्चन मिस किया है थोड़ा सा ऊपर, सो लेट मी गो थ्रू दैट एज वेल. ओके, एंड दैट वाज डू इट रियली रीड माइंड्स. Sarvat is like, does it really read minds? We will answer that. That's a very interesting question, Sarvat. Thank you so much for bringing me that question. Okay, so there is a lot that we need to do as a school owner, as a school head, as a school teacher. तो हमें बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारा टाइम लगता है इसमें. तो ChatGPT can help you reduce on time for any particular task. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने जो है वो बहुत सारे काम करने होते हैं लेकिन काम करने के लिए हमें टाइम नहीं मिलता है, ये भी करना है, लेसन प्लान भी बनाना है, डॉक्यूमेंट्स भी बनाने हैं, बीइंग अ स्कूल लीडर शायद स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान भी बनाना है. सो हाउ टू गो अबाउट यूजिंग ChatGPT टू गेट द राइट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स. तो पहली चीज जो हमें हमेशा याद रखनी होगी, ठीक है ना, फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू, अच्छा, डज इट स्टोर योर कॉन्वर्सेशन. ChatGPT स्टोर्स योर कॉन्वर्सेशन. ऐसी कौन सी कॉन्वर्सेशन करनी है आपने शादी है जो आपको डर लग रहा है कि तो ChatGPT स्टोर कर लेगा तो प्रॉब्लम है. सो यस, इट डज स्टोर योर कॉन्वर्सेशन, इट डज सेव योर डेटा. ओके, सो लेट्स गो अबाउट कि अगर हमारे पास इतने सारे टास्क है तो हम कौन कौन से टास्क जो है वो हम ChatGPT को बोल सकते हैं कि प्लीज डू इट फॉर मी, एंड इट बिकम्स इजियर फॉर यू. अच्छा, पहले तो हम एक चीज को समझने की हमें जरूरत है, जहां पे हम सर्च इंजन यूज कर रहे होते हैं. हम गूगल पे कोई भी क्वेश्चन डालते हैं तो क्या होता है उसके बाद, उस क्वेश्चन के बाद क्या होता है, कोई चीज हम सर्च कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा उसका वर्ड डालते हैं कि लेसन प्लान फॉर KG1 या क्लास लेसन प्लान, साइंस लेसन प्लान फॉर क्लास 1. अगर इस तरह का मैं कोई रिस्पॉन्स डालती हूँ गूगल पे, सिंपल गूगल पे, तो क्या होता है, कितने रिस्पॉन्सेस आते हैं, लिंक्स, वेबसाइट्स, इमेजेस, डाटा. ओके, इट जनरेट्स मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस जनरेट हो जाते हैं, एंड देन यू हैव टू पिक एंड सेलेक्ट कि यार इसमें से कौन सा रिस्पॉन्स सही होगा. एक खोलते हैं, दूसरा खोलते हैं, तीसरा खोलते हैं, चौथा खोलते हैं. यू डू ऑल दैट, राइट? करते हैं या नहीं करते हैं? और फिर बार बार आपको बैक एंड फोर्थ, फिर इसके बाद आपको वो सर्च वर्ड चेंज करना पड़ता है कि नहीं ये नहीं ये लिखते हैं, ये नहीं ये लिखते हैं, अच्छा चलो ये लिखते हैं. सो द मोर सर्च वर्ड्स यू नो, बेटर इट गेट्स टू गेट द रिस्पॉन्स. कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ लोग को शायद ये भी नहीं पता होगा कि जब हम लेसन प्लान ढूंढ रहे होते हैं तो अगर हम की स्टेजेस के हिसाब से ढूंढें तो हमें ज्यादा स्पेसिफिक मिल जाते हैं, ग्रेड लेवल्स के हिसाब से ढूंढते हैं तो हमें ज्यादा स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज मिलना शुरू हो जाते हैं. जितना हमारा बेटर सर्च वर्ड होता है उतने बेटर हमें रिस्पॉन्सेज मिलते हैं. अग्री? यस बीना, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कितना रिलायबल भी है. ठीक है, बिल्कुल. कुछ रेलेवेंट होते हैं, कुछ इररेलेवेंट होते हैं. सर्वत ब्रिलियंटली आंसर्ड कि कुछ रेलेवेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं, कुछ इररेलेवेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं. ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, आहिस्ता 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 इट कीप्स ऑन चेंजिंग कि हाँ हम चेंज करते रहते हैं, लेकिन हमें खुद ही एक डिफाइन करना होता है कि ठीक है, अच्छा ये नहीं तो ये दिखा दो, ये नहीं तो ये दिखा दो. अच्छा, अब एक और सवाल मैं यहाँ पे आपसे पूछती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं एज एन ChatGPT, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बैकग्राउंड क्या है. हाउ मेनी ऑफ यू, अच्छा हमारे पास डिफरेंट लेट्स से कि ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दो ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलती हूँ. एक है गूगल और एक है माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, गूगल का जो ईमेल आईडी होता है वो होता है gmail.com. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो होता है वो hotmail.com होता है या live.com होता है. इस तरह के ईमेल एड्रेसेस होते हैं. ठीक है, ईमेल एड्रेसेस डिफरेंट होते हैं. और इसके अलावा जब हम वो सर्च इंजन यूज करते हैं तो गूगल वाला जो होता है वो google.com होता है. ठीक है,
माइक्रोसॉफ्ट वाले में हम जो है वो डिफरेंट वो यूज करते हैं। इसी तरह से ब्राउजर्स होते हैं, गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, या फिर हम यूज कर रहे हैं दूसरा ब्राउजर जो कि बिंग आजकल आया हुआ है, बिंग आया हुआ है, या गूगल अर्थ आया हुआ है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स भी यूज कर, सफारी आता है हमारे फोन पे, सफारी होता है। सो दैट डिफरेंट ब्राउजर्स आर बी यूजिंग। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग ऑल गूगल आइटम्स, गूगल के स्टोर से कौन कौन चीजें ले रहा है, और कितने लोग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की चीजें ले रहे हैं। सो राइट, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। ओके, गूगल 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 गूगल। कैन यू इमेजिन, सो कैन वी से कि 99% लोग गूगल यूज कर रहे हैं? Do we agree on this fact कि 99% people are using Google? Yes, brilliant. Now this is going to establish, this is establishment, ठीक है? अब देखते हैं आगे क्या होता है, सही है? तो आज का हमारा एजेंडा, अब हम अपने एजेंडा पे आते हैं। हमने बहुत बैकग्राउंड सेट कर लिया, अपने अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह बता दिए। लेट्स सेट द बैकग्राउंड हियर। ऑल गूगल, नेवर डिफरेंशिएटेड। हाँ बिल्कुल, हमने कभी भी जो है वो हॉटमेल पे जाने की कोशिश नहीं की, लाइव पे जाने की कोशिश नहीं की। टीम्स का एक प्लेटफॉर्म होता है, टीम्स का प्लेटफॉर्म इज माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म, तो हम नहीं यूज करते टीम्स का, हम गूगल का ही यूज करते हैं। हम जो ऑनलाइन मीटिंग की भी, वो भी गूगल मीट यूज करते हैं। ऑनलाइन अगर हम कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हो तो गूगल मीट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है? जूम एक थर्ड पार्टी है, इट्स नॉट गूगल, इट्स नॉट माइक्रोसॉफ्ट, इट्स अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी वो जाती है, दोनों नहीं होगी, तीसरी, ठीक है? बिल्कुल, उसके पास, जूम के पास सिर्फ जूम है और कुछ नहीं है, वो थर्ड पार्टी है, ठीक है? तो इस तरह से यू कैन सेग्रीगेट एप्लीकेशंस इनटू डिफरेंट स्टोर्स, एक स्टोर दूसरा स्टोर। तो हम 90% के स्टोर पे जाते हैं, गूगल के स्टोर पे जाते हैं, गूगल की चीजें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुझे अब इसको हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं कि हम अपने रियल लाइफ से, हमारी जो रेगुलर लाइफ है उससे रिलेट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप एक राशन वाले की, लेट्स से फॉर एग्जांपल, राशन वाले की दुकान पे जाते हैं आप, ठीक है, और आप जाके उससे कोई चीज मांगते हैं जो आपके घर के करीब है, ठीक है, और आपको वो रेगुलरली देखता है कि ये बंदी रेगुलरली आती है या बंदा रेगुलरली आता है, ठीक है। आप जाके वहां पे कोई एक नई चीज मांगते हो कि मुझे जो है वो एप्पल विनेगर चाहिए, वो कहता है मेरे पास नहीं है। वो दो बंदे और आते हैं, एप्पल विनेगर चाहिए, कुछ ट्रेंडी सा चल जाता है, हर कोई एप्पल विनेगर मांग रहा है, ठीक है। तो वो दुकान वाला क्या करेगा थोड़े अरसे बाद, जब वो देखेगा कि 10 लोग डिमांड कर रहे हैं, 11 लोग कर रहे हैं, वो रखना शुरू करेगा, है ना, वो स्टॉक करना शुरू करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्टॉक रखना शुरू होगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे एरिया में एप्पल विनेगर की डिमांड है, पीपल आर यूजिंग इट। जो कि वो होता है ना, एरिया वाइज भी शॉप्स में आपको डिफरेंट चीजें नजर आती हैं। आपको टाइम मेडिकोस में चले जाएं तो आपको ज्यादा स्टफ नजर आता है जो कि इंपोर्टेड स्टफ होता है। आप लेकिन अगर लोकल मेडिकल स्टोर में चले जाएं तो लोकल मेडिकल स्टोर में लोकल चीजें ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे लोकल की डिमांड ज्यादा होती है। सो पीपल डू मेक चेंजेस टू देयर स्टोर्स एज पर द डिमांड। सिमिलरली गूगल हैज अ लॉट ऑफ डेटा, क्योंकि हम सारे गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना डेटा है उसके पास, मैं क्या कर रही हूं तो मेरा डेटा, मैंने अगर डिफरेंशिएशन किया तो मेरा डेटा, कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने डिफरेंशिएशन, कराची वाले वो लोग हैं जिन्होंने अभी अभी डिफरेंशिएशन पढ़ना शुरू किया है, उसमें साइमा है, उसमें ये है, उसमें ये है, उसमें ये है। ये वो लोग हैं जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, तो वो डिफरेंशिएशन वाला डेटा जनरेट करना शुरू कर दिया उन्होंने, और अलाइन करना शुरू कर दिया कि भाई ठीक है, यहाँ पे साइमा जो है वो बहुत ज्यादा एजुकेशन के बारे में पढ़ती है, तो इसको वो वाला डेटा ज्यादा चाहिए होगा। सो एक अदरवाइज प्रोफाइल क्रिएट होता है आपका। जैसे ही आप ऑनलाइन जाते हो, आप गूगल क्रोम भी यूज कर रहे हो, तो गूगल क्रोम भी आपने अपनी ईमेल आईडी से ही इंस्टॉल किया हुआ होता है। अगर आपने उसको अपने ईमेल आईडी से कनेक्ट किया हुआ है तो वो आपको ऐसे ही रिस्पॉन्सेज देगा जैसे कि आप रोजाना सर्च करते हो, ठीक है। इट नोज कि यू आर एजुकेशनिस्ट। इवन फेसबुक, चले फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक को हर चीज पता है। फेसबुक को हर चीज पता है कि आप क्या करते हो, आपके टाइमिंग्स ऑनलाइन होने के क्या हैं, आपके सर्च किस तरह के होते हैं, बिकॉज आप जो रेगुलर में कॉन्वर्सेशंस कर रहे हो, इट हैज द डेटाबेस। डेटाबेस कलेक्ट होता है, आपने एक वर्ड भी लिखा तो उसका भी डेटाबेस जाता है। लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं होता कि आपकी जो है वो बैंक अकाउंट से, बैंक से चीजें निकल जाएंगी या ये चीजें निकल जाएंगी। नो,
उसकी अपनी एक सिक्योरिटी बैंक भी जनरेट करता जा रहा है साथ साथ में। क्यों? क्योंकि ऐसे स्कैम्स हुए हैं ना, तो बैंक भी अपनी सिक्योरिटी क्रिएट करता जा रहा है। अब क्या होता है, पहले हम क्या करते थे कि ऑनलाइन जाते थे, शॉपिंग करते थे, हो जाती थी, आपने क्रेडिट कार्ड नंबर डाला, हो गई शॉपिंग, मैंने की है बहुत, मुझे पता है। लेकिन अब क्या होता है कि अब आप ऑनलाइन जाओ और अगर आप क्रेडिट कार्ड डालो तो वो पहले ओटीपी आता है कि ईमेल पे ओटीपी आया होगा या आपके फोन पे ओटीपी आया होगा, वन टाइम पासवर्ड। तो वन टाइम पासवर्ड आप डालोगे तभी वो लॉगिन करेगा तभी वो पेमेंट करेगा। सिक्योरिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो हर चीज जो डेवलप होती है उसके साथ उसकी सिक्योरिटी भी डेवलप होती है, उसके साथ उसकी पॉलिसी भी डेवलप होती है, उसके लॉज भी डेवलप होते हैं। अब हुआ क्या है पिछले 2-3 सालों में या 4 सालों में, एआई जनरेट हो रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट हो रही है, लेकिन वो इतनी तेजी से जनरेट हो रही है कि उतने तेजी से हमारे लॉज नहीं बन रहे, उतनी तेजी से सिक्योरिटी नहीं बन रही है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। जब हम कहते हैं ना कि चैट जीपीटी खतरनाक है, हाँ हो सकता है, चैट जीपीटी भी हो सकता है, और इसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें उन्होंने लीगली, जाहिर है अगर मैं एक स्टोर पे बैठी हुई हूँ, अगर मैंने एक दुकान है तो मेरी दुकान में अगर डिमांड जो है वो बंदूकों की हो जाती है कि भाई गन्स लो आके बाय करना चाहते हैं, तो मैं तो नहीं प्रोवाइड करूंगी ना, मुझे पता है मैं पकड़ी जाऊंगी। हमारी कंट्री के कुछ लॉज है, आई शुड नॉट बी प्रोवाइडिंग इट। ठीक है, और मैं कोशिश भी नहीं करूंगी, सोचूंगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी दुकान बंद हो जाएगी भाई, उसका लाइसेंस का अलग एक पूरा सिलसिला होता है। मेडिकल स्टोर है तो मैं मेडिकल स्टोर की चीजें रखूंगी, उसके साथ में जनरल मर्चेंडाइज रख सकती हूँ, लेकिन जनरल मर्चेंडाइज के साथ मैं मेडिकल नहीं रख सकती, क्योंकि मेडिकल के लिए मुझे कहीं ना कोई लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी टू बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल यही है कि जब डॉक्टर की आप कोई भी वो लेके जाते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन, तो वो हम खुद नहीं पढ़ पाते कि उसमें लिखा क्या है। कौन पढ़ पाता है? हु कैन रीड इट? मेडिकल स्टोर वाले को फौरन पता चल जाता है कि क्या मेडिसिन लिखी हुई है, हमें नहीं समझ में आ रही होती है, हम पढ़ ही नहीं पा रहे होते कि क्या लिखा है। ठीक है ना? यस, फार्मासिस्ट जो है वो आराम से पढ़ लेते हैं, मेडिकल स्टोर वाले फार्मासिस्ट बहुत आराम से पढ़ लेते हैं, बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ लाइसेंसिंग in the field so that they can open up a medical store. So you need some kind of licensing, you need some kind of permission from the government. So this is the same way कि चैट जीपीटी बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। गवर्नमेंट ने अभी भी हमारे लॉज के लिए, आपको समझना पड़ेगा ना कितनी एक्सट्रीम तक कौन कौन से इसमें रिस्पॉन्सेस, कोशिश उन्होंने पूरी की है अपने आप को कन्फाइन रखने की, लेकिन वही वाली बात है कि कुछ चीजें शायद हम, मी बीइंग अ लेमैन पर्सन में नॉट नो कि ये नहीं करना चाहिए था, वो हो जाए तो एक गड़बड़ हो सकती है। तो गवर्नमेंट स्टिल चेकिंग के यार इसमें क्या क्या चीजें हो रही है। चैट जीपीटी बहुत सारी कंट्रीज में बैन भी हो चुका है कि नहीं यूज करना है, बिकॉज वाई, एंड इट इज ऑल्सो पीपल ओवर हियर ऑल्सो सेइंग कि यार ये नहीं यूज होना चाहिए क्योंकि बच्चों की क्रिएटिविटी जीरो हो रही है। आप सवाल पूछते हो, जवाब मिल जाता है, तो यार सवाल तो आप गूगल से भी पूछते थे, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गया? चले खैर, there are a few countries, I'm not going to name them because laws are changing frequently. मैंने बीच में जो सुना था वो जापान का सुना था कि जापान ने उसको बैन कर दिया है। 2 कंट्रीज का और सुना था, लेकिन वहां पे कहा अब ये लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि उन्होंने बैन उठाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने लिमिटेड यूज अगेन उन्होंने कर दिया, क्योंकि वो खुद भी चेक कर रहे हैं कि should it be used or should it not be used, डेटा कितना है, कितना ऑथेंटिक, वही वाली बात के लोग पूछ रहे हैं, ऑथेंटिक कितना है। ठीक है ना? चले पहले इसके आगे स्टैब्लिश करते हैं कि चैट जीपीटी आया कहाँ से, क्या है ये, फिर इसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और इस्तेमाल करना चाहिए तो कितना इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, चैट जीपीटी क्या है? तो चैट जीपीटी बेसिकली एक एआई मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई इज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। ठीक है ना? जिसमें वो कर क्या रहा है, वो पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है, एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? जब हम, बहुत सारी चीजें कनेक्ट करूंगी यहाँ पे मैं, कि हम जब एक रोबोट को भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है ना, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे सुन सुन के रोबोट को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक एल्गोरिदम डेवलप होता है कि दिस इज हाउ आई नीड टू बी वर्किंग। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है कि आप किस तरह से, आपका पैटर्न क्या है, आप किस तरह से सवाल पूछते हैं, आप किस तरह के, किस नौयत के सवाल पूछते हैं, कितने सवाल पूछते हैं, तो उसके हिसाब से वो पैटर्न डेवलप करता है। इसका एग्जाम्पल एक और मजे का है, लेकिन वो मैं आहिस्ता स्टैब्लिश करूंगी। आई गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, डोंट वरी अबाउट इट। स्टूडेंट्स, यस,
Beena, what is happening is कि even if you are looking at UK, US वगैरह, तो बहुत सारी जगहों पे चैट जीपीटी की यूज को उन्होंने बता दिया है. हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हिसाब से लॉज बना लिए इस वक्त, क्योंकि कंट्री के लॉज तो आए नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा है, उनको खुद ही वो चेक करने में और बनाने में टाइम लग रहा है. तो हर ऑर्गेनाइजेशन ने, हर कंट्री ने अपने अपने लॉज स्टैब्लिश कर लिए हैं. कहीं जगह पे उन्होंने कंप्लीटली बैन कर दिया है, कहीं वहां लिमिटेड यूज कर दिया है. Now we over here in Pakistan, we मतलब हमारे पास चीजें बहुत let's say के लेट आती है थोड़ी सी. We are very good at documentation. हमारे पास चीजें शायद थोड़ी सी कभी कभार लेट आती है, कभी कभार ये हो जाता है कि जैसे हमने बीच में YouTube बैन कर दिया था, क्योंकि YouTube में हमें लग रहा था कि बहुत बुरा हो गया है, बहुत गंदा है. फिर क्या हुआ भाई, आपकी 90% आवाम जो है वो YouTube पे सीख रही है, उसका क्या? तो फिर हमारे यहाँ से बैन उठ गया. हम बैन लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास डेवलपमेंट में और मजीद, हमारे पास डेवलप बहुत अच्छी चीजें होती है, डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है. वो टाइम इतना लग जाता है कि चीजें हाथ से निकल चुकी होती है, और फिर मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं होती कि मॉनिटर कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए. क्योंकि जाहिर है जब लॉज बनेंगे उसके बाद ही एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनेगा कि भाई आप ये इतना एक्सेस दो, इतना एक्सेस ना दो. तो वो इट्स अ प्रोसेस. तो अनफॉर्चुनेटली ओवर हियर इन पाकिस्तान वी टेक अ लॉन्गर टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोसेस. अभी तो शायद गवर्नमेंट को पता नहीं है, मैं कह नहीं सकती, आई कांट से, पता नहीं उनको पता है या नहीं पता है कि ये भी हो रहा है. पता जरूर होगा. खैर सॉरी. सो चैट जीपीटी क्या है? इसको समझते हैं. अच्छा, इन सम देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ दीस एआई मॉडल्स. बिल्कुल बिल्कुल. अमरीन वेरी राइट कि ओपन एआई, वही वाली बात है. अच्छा, ओपन एआई क्या था? ना वो गूगल का था, ना वो माइक्रोसॉफ्ट का था. यहाँ मैं थोड़ा सा स्टैब्लिश कर रही हूँ. ना वो गूगल का था, ना वो माइक्रोसॉफ्ट का था. इसको स्टार्ट किया और एलॉन मस्क वाज वर्किंग ऑन इट एंड दिस एंड दैट. फिर एलॉन मस्क ने उसको उसमें से विड्रॉ कर लिया और माइक्रोसॉफ्ट ने उसको परचेज कर लिया. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको परचेज किया. अब यही वही वाली बात जो हमने पहले की थी. माइक्रोसॉफ्ट ने इसको परचेज किया और उसने लॉन्च कर दिया, पॉपुलर हो गया, यू नो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया. माइक्रोसॉफ्ट के पास हमारा डेटा ही नहीं है डेटा? सारा डेटा तो हमारा गूगल के पास है. तो इसकी एफिशिएंसी, अगर ये गूगल लॉन्च करता तो इसकी एफिशिएंसी और भी ज्यादा होती. लेकिन गूगल ने अपना एक लॉन्च किया, उन्होंने भी अपना एक एआई लॉन्च किया, लेकिन उसमें बैकहैंड पे जो पूरा सिस्टम लगाया वो इतना एफिशिएंट नहीं था, इसलिए वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है. लेकिन चैट जीपीटी, क्योंकि इसके ओपन एआई वालों ने बहुत टाइम लगाया, बहुत पैसे लगाए हैं, बहुत लोग लगाए हैं, तो इस वजह से जो है वो बहुत एफिशिएंट सिस्टम है, लेकिन उनके पास हमारा डेटा नहीं है. तो जो चैट जीपीटी, हमारे जो लोगों ने कहा ना कि चैट जीपीटी बहुत जनरलाइज किस्म का डेटा निकाल रहा है, दैट इज बिकॉज इट डज नॉट हैव आवर डेटा. इसके पास हमारा डेटा ही नहीं है. डेटा किसके पास है? गूगल के पास. अगर गूगल क्रिएट करेगा तो ज्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि 90% तो उसके पास डेटा है हमारा. वो हमारे एरिया के हिसाब से हमारी चीजों को हमें प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसके पास नहीं है, इसलिए वो बहुत जनरलाइज किस्म के आए चले जा रहे हैं. लेकिन ये डेटा कलेक्ट कर रहा है. जैसे दूसरा सवाल किसी ने पूछा था कि क्या ये डेटा कलेक्ट करता है आपकी कॉन्वर्सेशन का? यस, इट इज कलेक्टिंग द डेटा. आपके बातों से वो पैटर्न डेवलप कर रहा है कि हाँ ठीक है, ये बंदा जो है वो एजुकेशन की फील्ड में है, ये बंदा जो है वो डॉक्टर है, ये बंदा जो है ये फला है. वो आपका डेटा जनरेट करता जा रहा है, करता जा रहा है और उसका डेटाबेस बनाता जा रहा है. हाँ नादिया, ऑनलाइन तो हम गूगल से ही जाते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि गूगल के प्लेटफॉर्म पे हमारा बहुत डेटा है, लेकिन गूगल वाले अपना डेटा थोड़ी देंगे माइक्रोसॉफ्ट वालों को. आप गूगल के प्लेटफॉर्म से जा रहे हो, वो अलाउ कर रहा है कि हाँ चैट जीपीटी यूज कर लो, लेकिन वो अपना डेटा नहीं दे रहा उसको. वहां पे मेरी स्टोर से आप सामान इस्तेमाल कर ले, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं कि ये बंदा क्या क्या खरीदता है. वो खरीद ले बल्ले आपकी चीजें मैं भी यहाँ पे दिखाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं डेटा नहीं दूंगी. ये नहीं बताऊंगी कि मेरा कस्टमर जो है वो क्या क्या करता है, या वो उसके पूरे दिन के रूटीन्स क्या है. हमारा पूरा रूटीन आप अगर थोड़ा सा गौर कर लेना, आपका फोन जो है ना, आपका फोन वो भी गूगल से सिंक हुआ हुआ है. अगर आप गूगल मैप खोलते हैं ना, अगर आप गूगल मैप खोलते हैं और आप सर्च करते हैं जगहें,
तो जाहिर है वो भी आपके ईमेल से सिंक हुआ है। कभी चेक करिएगा कोशिश करके कि जब आप गूगल का पूरे साल का डेटा निकालिएगा, आपके पास एक ईमेल भी आती होगी शायद, कि मेरे पास आती है जहाँ पे ये बताता है गूगल कि आप पूरे साल कहाँ कहाँ गई हैं। तो वो पूरा आपको बता देगा, क्योंकि आपका फोन ओपन होता है, आपका उसमें जीपीएस ओपन होता है, तो वो आपको पूरे साल का बताता है कि आपने ये विजिट किया था, टाइम डेट हर चीज के साथ बताता है कि आप इस टाइम पे इस जगह पे थी, इस डेट पे इस डे पे आप इस जगह पे थी, कितनी देर थी, सब 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 कुछ, एवरी सिंगल थिंग। अगर आपका फोन ऑन है, जीपीएस ऑन है, इंटरनेट ऑन है, एंड देयर इज नो हार्म। अब लोग डर रहे हैं हमारा डेटा चला गया, देयर इज नो हार्म, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स गोइंग टू टेल यू, नॉट एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। आपको बताएगा अगेन कि मैं एक स्टोर हूं, मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ और कितना कर सकती हूँ, तो मैं उतना ही बताऊंगी। हाँ, अपने ईमेल आईडी का ख्याल रखें, जहां आप लॉग इन करते हैं वहां से लॉग आउट करें। अपने पासवर्ड्स का ख्याल रखें, कहीं पे पासवर्ड लूज ना छोड़ें। दिस इज व्हाट वी नीड टू बी कंसर्न अबाउट। हमारा कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि हमारा गूगल डेटा ले जा रहा है, हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि हमें हमारा डेटा गूगल भले ले जाए, लेकिन इसके अलावा कोई ना ले जाए, क्योंकि अगर कोई और ले जाएगा तो वो गड़बड़ करेगा। ठीक है। यस, गूगल फोटोज में भी अगर आप अपने फोन को सिंक करके रखते हो, गूगल फोटोज अपलोड होते रहते हैं ड्राइव पे, तो आपके ड्राइव पे पूरे, इवन एप्पल फोन पे भी आप 15 साल पुरानी भी फोटोज निकाल लेंगे तो वो आपको डेट एंड टाइम के साथ बताएगा कि इस दिन इस टाइम पे आपने ये तस्वीरें खींची थी। तो डेटा स्टोर होता है हर जगह से। आप जितनी डिजिटल डिवाइस यूज करोगे, वहां पे सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस डालोगे, ईमेल एड्रेस से ऑटोमेटिकली आपका डेटा जनरेट होना शुरू हो जाता है और आपका डेटा स्टोर होना शुरू हो जाता है क्लाउड पे। सो समहाउ और द अदर वी आर लिविंग ऑन क्लाउड। ठीक है, वी आर ऑलरेडी लिविंग ऑन क्लाउड। चले, मूविंग ऑन। हम बहुत सारी बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एनी आइडिया? एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अच्छा, पर्पस इस सेशन का यही याद रखिएगा, इस पर्पस इस सेशन का यही है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग। क्योंकि बीइंग अ टीचर, हमें अगर अपना खुद की एक स्टैब्लिशमेंट नहीं होगी, हम बहुत छोटी छोटी चीजों से डरेंगे, तो ये इवेंचुअली वी आर गोइंग टू बी लेफ्ट आउट। वी डोंट वांट टू डू दैट। हाँ, आपकी सेवेंथ सेंस है, ओके। एआई कुछ कह रहे हैं कि सेवेंथ सेंस है, मैन मेड सिस्टम है, ठीक है, इंटेलिजेंस का सिस्टम है, मशीन सिस्टम है, ठीक है, वेरी गुड। इंटरनेट रिसोर्सेज, वेरी गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ह्यूमन मेड, ठीक है, वेरी गुड। आपको पता है आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप यूज कर रहे हैं ऑलरेडी? अगर मैं ये कहूं कि आप ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो, इट इज नॉट दैट समथिंग इज गोइंग टू बी क्रिएट यू गोइंग टू यूज लेटर ऑन, आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो। अच्छा, अमरीन कह रही है फोन में यूज हो रहा है, बिल्कुल यूज हो रहा है, कैसे? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा आप लोग को ऑलरेडी वो समझ में आना शुरू हो गया कि गूगल पे भी अगर आप अपना कोई भी सर्च कर रहे हो, तो वहां भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है बैकएंड पे, कि वो आपको डेटा आपके हिसाब से दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पॉकेट में, आपका फोन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो आपके फेस को देख के अनलॉक होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपके फिंगरप्रिंट्स को देख के ऑन होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हर चीज में आप कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो। आप हैरान हो जाओगे कि आप ऑलरेडी यू यूजिंग इट ऑलरेडी, पीपल हैव made those things and you're using it. Yes, yes. तो हर जगह आपको देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां पे आप कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो। आप अपने ईमेल में जाते हो, आपको वहां पे स्पैम मैसेजेस आपको होता है ना, कभी कभार ईमेल नहीं आती है, भाई ईमेल नहीं आ रही, स्पैम में चली गई। स्पैम इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि वो आर्टिफिशियली वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये वर्ड लिखा होगा तो इसका मतलब है ये स्पैम है, तो वो ऑलरेडी स्पैम में फेंक देता है। कुछ वर्ड्स डाल दिए गए हैं, कुछ डेटा डाल दिया गया है ईमेल सिस्टम्स में, जिससे वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये ईमेल सही जगह से नहीं आई है, ठक उसको स्पैम में फेंक देता है, ऑटोमेटिकली कर लेता है। वहां आप डिफाइन भी कर सकते हो जाके कि भाई मुझे ये इस तरह की ईमेल्स नहीं आनी चाहिए, तो वो भी फर्दर इसको स्पैम कर देता है। ठीक है, ये चीजें इनको नहीं चाहिए, इसका मतलब ये इनके लिए स्पैम है। वेरी गुड, हाउ कैन वी डिफाइन इट? हाँ, इसको भी हम वर्किंग करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम वो करेंगे, ठीक है। फर्दर आजकल ट्रेंड क्या है?
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अचानक से क्या हुआ है, अचानक से चैट जीपीटी आ गया, ओह माय गॉड चैट जीपीटी क्या कर रहा है। और जितना क्विकली चैट जीपीटी ने स्प्रेड आउट हुआ है, जितना क्विकली लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जंप किया है और यूज करना शुरू किया है, ये एक आज मतलब इट्स शॉकिंग। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई गवर्नमेंट इज फेलिंग, बिकॉज एकदम से बहुत सारी पब्लिक चली गई है तो वो विड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं ये नहीं यूज करना है, मगर उसको वो उसके लॉज भी नहीं क्रिएट कर पा रहे क्योंकि वो एक वास्ट डेटा है, बहुत वास्ट डेटा है, बहुत एक्सट्रीम डेटा है। अब ये हुआ कैसे जनरेट, ये भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली। अच्छा बहुत होता ये है कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, लेकिन बहुत जल्दी नहीं देना चाहूंगी, लेट मी होल्ड इट बैक। आई गिव यू एन एग्जांपल, बहुत अच्छा वाला मजे का। अच्छा ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर हम कहें कि डीप लर्निंग क्या है, वो सबसेट है आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क्स का। आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क्स क्या है, वो सबसेट है मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग क्या है, सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सबसेट का पता है ना, मैथ्स में हम पढ़ते हैं सेट्स एंड सबसेट्स। कुछ कंपोनेंट्स इसमें होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स इसमें होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स इसमें होते हैं, तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। yes you can all easily make, bilkul Iram, you can easily make your circulars using chat gpt, brilliant, yes that's happening. तो पॉइंट इज के सबसेट कि भाई डीप लर्निंग है, फिर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं, फिर उसके बाद मशीन लर्निंग है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो सबसेट्स बनते चले गए। ये बन गया, इसमें कुछ कंपोनेंट्स इसमें चले गए, इसमें से कुछ कंपोनेंट्स इसमें चले गए, इसमें से कुछ कंपोनेंट्स इसमें चले गए। सो लेट्स गो अबाउट एवरी सिंगल थिंग। सबसे पहले हम लेते हैं सबसे छोटा वाला सर्कल, यानी डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है, ठीक है ना। It's a universal, it is still portion, it has taken subsets from everything and it has compiled it into an artificial intelligence, or it has a subset, deep learning की कुछ चीजें जो है वो artificial neurons ले लेनी, artificial की कुछ चीजें machine learning ले ली, उसकी बेस्ट चीजें जो है वो ये इसने ले ली, artificial intelligence ले ली। अब वो कैसे जनरेट हुआ, कौन सा डेटा जो है वो उठा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हुई है, इसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं डीप लर्निंग के ऊपर। ये डीप लर्निंग क्या है। डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का सबसेट है। अभी हमने डिस्कस किया कि वो मशीन लर्निंग का सबसेट है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि पैटर्न्स डेवलप करना शुरू करते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करने वाले हैं कि जिसमें गाड़ी ऑटोमेटिकली चले, आपको ना चलानी पड़े। पॉसिबल है? गाड़ी ऑटोमेटिकली चल सकती है बगैर हमारे? ओके, सम मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग यस यस, ओके। Exactly. ChatGPT is only for text. हाँ, हाँ, ओके। गाड़ी ऑटोमेटिकली चलेगी तो क्या, टेस्ला ऑलरेडी इज वर्किंग, बिल्कुल, वेरी गुड, ओके। गाड़ी ऑटोमेटिकली चलेगी, उसका खतरा क्या है, उसमें उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं। हमें डर ये लगता है ना कि अल्लाह कि हम नहीं चला रहे, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। तो एआई कैसे जनरेट कर रहा है, कैसे चला रहा है गाड़ी भाई, हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, नाइट राइडर देखी थी हमने मूवीज में, बिल्कुल तायरा इंटरेस्टिंग। नाइट राइडर याद हो गई। तो जो मूवीज बनती है ना साइंस फिक्शन में, कहीं ना कहीं वो रियलिटी होती है। और कहते हैं ना कि जिस तरह से मैट्रिक्स बनी थी जहाँ पे ह्यूमंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उन्होंने रोबोट बनाते थे और रोबोट्स ने हमारे पे जो है वो कब्जा कर लिया था, ह्यूमंस पे कब्जा कर लिया था, और ह्यूमंस को जो है अपना वो बना लिया था। तो ये इट कैन हैपन इन नियर फ्यूचर, देयर आर पॉसिबिलिटीज, क्योंकि हमने मशीन को इतना ट्रेन कर दिया है कि वो हमें रूल कर सकती है। सो प्रॉबेबली ये भी डर है लोगों को इस चीज का। हाँ, यस, थैंक यू सो मच नादिया शाहिद। नादिया शाहिद कह रही है कि कराची में तो ये वर्क नहीं करेगा भाई, क्योंकि एआई भी घबरा जाएगा बिल्कुल सही कहा नादिया कि एआई भी शायद घबरा जाएगा, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एट द सेम टाइम, और उसमें अगर कोई भी प्रोसेसिंग फेल हो गई तो हाँ। अच्छा, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है ये देखते हैं। हो क्या रहा है कि गाड़ी चलानी है, ठीक है, तो कर क्या रहे हैं ये लोग कि
गाड़ी चलाते हुए लोगों के एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, यानी कि लेट्स से तस्वीरें लेते जा रहे हैं कि भाई ठीक है, हम छोटी छोटी तस्वीरें लेते जाते हैं और डेटा कलेक्ट होना शुरू होता है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन बनते जा रहे हैं, तो हम डेटा कलेक्ट करते जा रहे हैं कि भाई ये करते हैं तो तेज चलती है, ये चलते हैं। पहला इनिशियल डेटा तो यही है ना कि ये गाड़ी तेज, अगर इसमें करेंगे तो तेज दबाएंगे तो तेज पे चलेगी, एक्सेलरेटर दबाएंगे तो एक्सेलरेट करेगी, और ब्रेक दबाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन होगी, स्लो डाउन होगी, ये एक डेटा हो गया, ये मशीन में फिट हो गया। उसके बाद हम कब एक्सेलरेट करते हैं, हम कब स्पीड बढ़ाते हैं, जब जगह होती है, इतने डिस्टेंस तक लोग नहीं होते, और आस में भी कोई, पास में भी जो है वो ज्यादा, इतना ज्यादा वो नहीं होता, आगे कोई नहीं होता। स्पेशली ये चीज हम देखते हैं, ह्यूमन पैटर्न्स को वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ह्यूमंस करते क्या है। मेरा डेटा अलग होगा, आपका डेटा अलग होगा डेफिनेटली। तो ह्यूमंस को ऑब्जर्व करके वो एक गाड़ी को चलाने की कहानी कर रहे हैं कि ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, अगर राइट में गाड़ी है तो हम लेफ्ट में टर्न हो जाते हैं, या ये टर्न होना होता है, अगर यहाँ गाड़ी है तो हम रुक जाते हैं। सो वो सारे इमेजेस कलेक्ट होते 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 इमेजेस कलेक्ट होते हैं, और फिर उसके बाद एक डेवलप किया जाता है कि जैसे ह्यूमन करता है वैसे मशीन करेगी। मशीन को प्रोग्राम किया जा रहा है, ठीक है। एंड इट इज बिकमिंग पॉसिबल कि गाड़ी रोड पे बगैर इंसान के चल जाए। अगेन उसके में लॉज होंगे, जाहिर है कि भाई आपके आगे, हमारे यहाँ तो हम डिस्टेंस रखते हैं सिर्फ कितना, 1 फीट का भी मुश्किल से, गाड़ी से गाड़ी के बीच में जो 1 फीट का डिस्टेंस होता है, लॉज है इंटरनेशनल लॉज के भाई इतना डिस्टेंस होना चाहिए, 2 फीट का या 3 फीट का डिस्टेंस, 2 फीट का होना चाहिए। तो हम तो नहीं रखते, हम तो लगा के 1 फीट भी शायद नहीं होता कभी कभार। तो एआई शायद हमारे कराची में चल जाएगा, लेकिन हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार आगे जगह है भाई, चल यार। बिकॉज हमारे तो वो है ना कि हम तो बिल्कुल लग के, गाड़ी, एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी के बीच में इतनी जगह होती है, बंदा चल भी ना चाहे। सो प्रोबेबली वहां पे एआई को डिफरेंसेस होंगे, लेकिन अगेन ह्यूमन बेसिस पे हो सकता है कि अगर हमारा डेटा इतना पहुंचा हुआ है वहां पे, तो हमारे हिसाब के डेटा के हिसाब से भी चीज बन जाए, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। बम्पर टू बम्पर, एग्जैक्टली, सांस लेने की जगह होती है पीठ पे खाली। वेरी गुड, वेरी गुड। अब डीप लर्निंग से उन्होंने क्या डेवलप किया, डीप लर्निंग से होता क्या है। लेट्स से कि आपने एक सिस्टम बना दिया, ठीक है, एक ट्रेडिशनल मशीन, हमारे यहाँ ये ऑलरेडी हो रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में अगर आप जाएंगे तो आप कोई भी चेक अगर आप डालते हो तो इट कैन रीड के, चेक पे जो लिखा हुआ है वो रीड कर सकता है, और रीड करके वो आपका चेक डिपॉजिट कर लेगा। आपको किसी बैंक में जाके अलग से डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, मशीनें रखी हुई है स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने, आपने वो मशीन में चेक डाला और वो डिपॉजिट हो गया आपके अकाउंट में। वो आपसे अकाउंट नंबर पूछता है, आपने ठक 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 अकाउंट नंबर डाला और चेक डाल दिया, वो चेक रीड भी कर लेगा और डिपॉजिट भी कर देगा, आपको उसी वक्त स्लिप भी दे देगा कि भाई हो गया आपका चेक डिपॉजिट, बाय बाय। यू डोंट हैव टू स्टैंड इन लाइंस, यू डोंट हैव टू गो डू एनी ऑफ दोस थिंग्स, जो कि ह्यूमंस को रिप्लेस। दूसरा डर जो है, जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होना चाहिए, वो ये है कि अब आप देखें ना, एक इंसान कितनी देर में चेक डिपॉजिट करेगा, क्योंकि जाहिर है वो सारा डेटा जो है वो कंप्यूटर में टक 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 डालेगा, टक 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 करेगा, फिर मेक श्योर करेगा, स्टैम्प लगाए, ये करे वो करे, आपको स्लिप दे। मशीन कितनी देर में कर लेगा, प्रॉबेबली इंसान को शायद 2 मिनट लगेंगे, मशीन को 30 सेकेंड लगेंगे। तो लोग क्या प्रेफर करेंगे, मशीन प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो एक्सपर्ट वो चाहते हैं, जो एरर की गुंजाइश कितनी होगी, एरर की गुंजाइश इंसान में ज्यादा होगी, मशीन में कम होगी। हम एक्सेल पे क्यों डालते हैं फॉर्मूलाज, हम क्यों कैलकुलेशन करते हैं, अगर वहां पर टाइपिंग गलत हुई होगी तो गलत होगा, वरना अगर आपने टाइपिंग सही की तो कैलकुलेशन सही आएगी। हम गलती ज्यादा कर जाएंगे, सो वी विल प्रेफर मशीन। तो ये एक और खतरा है जो कि एआई से हमें है, कि जो इट विल रिप्लेस ह्यूमन बींग्स। हाँ, ह्यूमन टच की जरूरत है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जहाँ पे ह्यूमन टच की जरूरत नहीं है। सो इन दैट केस we need to understand, we need to know about AI so that we are able to use ourselves efficiently. अगर हम वही ट्रेडिशनल तरीकों से काम करेंगे ना, जैसे एक एग्जांपल और देती हूँ कि पुराने जमाने में जो चटनियां वगैरह पीसी जाती थी वो सिलबट्टे पे पीसी जाती थी। आजकल अगर हम सिलबट्टे पे पीसेंगे तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, हालांकि न्यूट्रिशियस वही है, ह्यूमन टच इंपॉर्टेंट। हम कहते नहीं यार, ह्यूमन टीचर में ह्यूमन टच तो होना जरूरी है, वरना तो कोई फायदा ही नहीं है, ये है वो है। तो वो भी तो ह्यूमन टच था ना, सिलबट्टे वाला छोड़ दिया हमने, क्यों, क्योंकि हमारे पास काम बहुत ज्यादा हो गए। टेस्टी वही होता है, बिल्कुल रशीदा, मैं यही तो कह रही हूँ कि टेस्टी वही है, न्यूट्रिशियस उसी में है।
सब कुछ उसी में है, लेकिन हमने छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है. सो ह्यूमन टच इज इम्पोर्टेंट, बट if you're not going to be as efficient as an AI, you will be left out. So that is one of the reasons why I believe that we need to know what AI is and we need to know how it works. ठीक है? Yes, even for surgeries. बिल्कुल बिल्कुल रोबोट्स आना शुरू हो गए हैं, सर्जरीज के लिए भी रोबोट्स आना शुरू हो गए. बॉट लर्निंग भी शुरू हो चुकी है कि स्टूडेंट्स आर नाउ मोर इंक्लाइंड टू लर्न फ्रॉम दीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट थिंग्स रादर देन टीचर्स. क्योंकि टीचर से एक सवाल पूछते तो वो कहीं की कहीं चली जाती है या नहीं पता होता, टीचर को बहुत अजीब सा जवाब दे देती कि नहीं आता मुझे. ठीक है, एंड वी अप्रिशिएट दैट टीचर्स इंस्टेड कि हाँ ठीक है नहीं आता तो बोल दो कि नहीं आता, क्योंकि हर चीज आना जरूरी नहीं है. लेकिन नहीं आता तो डायरेक्ट भी तो करने की काबिल हो कि आप किस तरह से उस रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकते हो, हाउ टू जनरेट दोस रिस्पॉन्सेस, हाउ टू कम अप विद द रिस्पॉन्स. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द सेम कि मशीन रीडिंग जो चेक्स है दैट्स डीप लर्निंग. ठीक है, डीप लर्निंग में इट कैन आइडेंटिफाई डिजिट्स, इट कैन आइडेंटिफाई नंबर्स. तो ये सारी चीजें एक डीप लर्निंग का वो है, सेगमेंट है. जैसे अब ड्राइविंग कार में भी एक कैमरा के थ्रू वो सारा डेटा जो है वो गाड़ी के अंदर ले लेता है. जो हमने सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम कहा था ना कि एक सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम डेवलप होने वाला है, तो कैमरा के थ्रू जो है वो डेटा लेना इज डीप लर्निंग. ठीक है, मूविंग टू द सेकंड वन, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स क्या है, आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क्स क्या है. तो आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क्स पे आ जाते हैं कि मशीन लर्निंग का सबसेट है. हम आते जा रहे हैं ना, ऊपर किसका सबसेट है, इसका सबसेट है, तो ये मशीन लर्निंग का सबसेट है. ठीक है ना. अब यहाँ पे क्या है, नोड्स एंड न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन कि भाई बहुत सारा डेटा आता है वो ट्रांसमिट होता है. वहां पे तो सिर्फ हम डेटा ले रहे थे, डीप लर्निंग से सिर्फ डेटा ले रहे थे कि ठीक है कैमरा से डेटा लिया लिया लिया. आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क्स क्या कर रहा है कि वो डेटास को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ऑर्गेनाइज कर रहा है. ये डेटा ये है, ये डेटा ये है, ये डेटा ये है, ये डेटा ये है. ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है. मूविंग फर्दर, मैं पीछे चली गई, सॉरी. जैसे कि इसका एक एग्जांपल जो होगा इसका जो नेटवर्क्स का, कि भाई आपके ह्यूमन बीइंग को देख के, ठीक है, आपके एज को देख के, आपके ब्लड प्रेशर को देख के, आपके कोलेस्ट्रॉल को देख के, सारी चीजों को देख के ये बता देगा कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है. उसके बाद बहुत सारा डेटा आपके पास कलेक्ट हो जाएगा, अप्लाई करता जाएगा, वो मैथमेटिकल फंक्शन लगाएगा और आपको ये बता सकता है कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है. हार्ट की बीमारी हो सकती है, हार्ट रेट आपका कितना लाइकली जा सकता है, खाली प्रेडिक्शन. आपका सारा डेटा लेके आपको लाइकली बता देगा कि आप इस एज पे अगर आपको ये है तो आपको ये वाली बीमारी इतनी फ्यूचर में हो सकती है, क्योंकि यहाँ आपने प्रॉब्लम किया हुआ है इस एज पे. सो इट पुट्स ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड इट गिव्स यू अ डेटा कि भाई ये आपका हो सकता है. सो दिस इज अगेन नेटवर्क्स के थ्रू हो सकता है कि भाई आपका पूरा डेटा ये इतना है, ये इतना है, ये इतना, ये इतना है. प्रॉब्लम हमारे यहाँ पता है क्या होता है, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना तो फिर हम परेशान भी होते हैं. डॉक्टर कभी ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है, कभी हार्ट रेट चेक कर रहा है, और कुछ डॉक्टर कुछ नहीं देखते, वो कहते हैं अच्छा आपको ये चले आप ये दवाई ले जाए. हम उसमें भी खुश हैं, हम उसमें भी खुश हैं, हमें पता ही नहीं आ रहा, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि भाई जो सारी चीजें चेक कर रहा है उसका रीजन क्या है. वो एक एक चीज को चेक करने के बाद एक डेटा बना रहा है कि एट दिस एज इफ दिस पर्सन इज हैविंग दिस ब्लड प्रेशर, दिस प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम, देन दिस मींस कि इसका प्रॉब्लम एक और नया डिजीज भी हो सकता है. नॉट नेसेसरली अच्छा बुखार हो रहा है आप ये टैबलेट खा ले, नहीं भाई बुखार हो रहा है आपने टैबलेट दे दी. अगर बंदा जो है वो शुगर पेशेंट है तो उसके लिए वो मसला हो सकती है, क्योंकि दवाई में भी शुगर होती है. डेटा नहीं है तो प्रॉब्लम क्या हुई, आपने गलत दवाई दे दी. मैंने ये फेस किया है बहुत रिसेंटली, बिकॉज एंटी एलर्जीज, मुझे एलर्जी हो रही थी, किसी ने एलर्जी की मेडिसिन देना शुरू कर दी और मेरा डायग्नोस्टिक ही नहीं किया. मैं 5 दिन मुझे एलर्जी हुई, मेरे पूरे बॉडी पे हाइव्स हो गए थे. मैंने जो है वो डॉक्टर के साथ पास गई, उन्होंने कहा एलर्जी है, उन्होंने जो है वो 5 दिन की दवाई दे दी. 5 दिन की दवाई मैंने खाई, तब तक वो कंट्रोल हुई, फिर वापस वो ट्रिगर कर गई. फिर गई डॉक्टर के पास, उसने इंजेक्शन लगा दिया कि इंजेक्शन लगा लो, 5 दिन की और दवाई दे दी, 5 दिन और खाई. इट केप्ट ऑन हैपनिंग. 10-15 दिन 3 डॉक्टर्स के पास गई, वो 10-15 दिन तक वो एंटी एलर्जी चलती रही. somewhat it triggered my mind, और मैंने डॉक्टर को वहां पे कहा, जब मैं उसको सेकंड चेकअप के लिए गई, मैंने कहा आप मेरा शुगर टेस्ट कर सकते हैं. आई वॉज नॉट अ शुगर पेशेंट. उसने शुगर टेस्ट की 300+.
उसने जो दवाएं लिखी थी वो काट दी, उसने कहा नहीं ये दवाइयां आप नहीं खा सकती अगर आप शुगर पेशेंट है, आप शुगर पेशेंट है। तो पता नहीं, हो सकता है जो पहली दफा मैं दवाई लेने गई वो मेरा प्री डायबिटिक स्टेज था, लेकिन क्योंकि वो डायग्नोस नहीं हुआ, आई बिकेम अ डायबिटिक पेशेंट. So yes, AI is doing what? It is generating all sort of data and then finalizing कि आपको ये हो सकता है. Exactly. This is because कि बहुत सारे डॉक्टर सिर्फ एक डेटा पे रिलाई कर रहे होते हैं, वो एक जनरलाइज, वही वाली बात पुराने जमाने में चल रहे हैं. अब हर एक चीज का मतलब एक चीज नहीं है. जब पुराने जमाने में हमारे पास बहुत लिमिटेड चीजें होती थी कि बुखार हो गया तो ये पिला दो, खांसी हो रही है तो ये पिला दो, सैनकोस पिला दो, बहुत जनरलाइज दवाइयां होती थी, बहुत लिमिटेड दवाइयां होती थी. बट नाउ ऑल दीज डिजीजेस आर बिकमिंग कॉम्प्लेक्स एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज. इट्स नॉट वन डिजीज, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज leading to something else. So AI is doing what? It's going to generate that data. Brilliant. So मूव होना चाहिए AI पे या नहीं होना चाहिए, सोचिएगा. ओके, मूविंग फर्दर. सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम में यहाँ पे अब क्या कर रहा है, वो तो खाली इमेजेस ले रहा था, ठीक है ना. शुरू वाला जो था वो सिर्फ इमेजेस ले रहा था. ये क्या कर रहा है, ये उसको नेटवर्क्स में डिवाइड कर रहा है कि ठीक है ये इमेज है, ये इस वक्त पे ये हो रहा है, इस वक्त पे ये हो रहा है, इस वक्त पे ये हो रहा है. इमेजेस को नेटवर्क्स में ऑर्गेनाइज कर रहा है. मूविंग फर्दर, थर्ड क्या है, मशीन लर्निंग. तीसरा सर्कल क्या है हमारा, मशीन लर्निंग. तो मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो अब यहाँ क्या हो रहा है मशीन लर्निंग में, ये सोचना पड़ेगा कि अब ये डिसीजन लेने के काबिल हो रहा है. मशीन लर्निंग इज अबाउट टेकिंग डिसीजंस कि अच्छा अगर ये है तो ये करना चाहिए, ये है तो ये करना चाहिए. डेटा तो ले लिया सारा, अब कोई डिसीजन भी तो आना चाहिए ना. सो मशीन लर्निंग इज हेल्पिंग टू क्रिएट दोस डिसीजंस कि हाँ ये डेटा है तो ये डिसीजन होना चाहिए, ये डेटा है तो ये डिसीजन होना चाहिए. सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग. नाउ मूविंग ऑन टू दिस वन, एक एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि हमारी स्पैम्स, जैसे ईमेल में हमारा स्पैम्स अगर होता है तो वो ऑलरेडी स्पैम फोल्डर में डाल देता है, डिसीजन ले लेता है कि भाई ये स्पैम है, इसको स्पैम फोल्डर में डाल दो. ये है इसको इसमें डाल दो, इसमें ये है तो इसमें. वो इतने नेटवर्क्स क्रिएट हुए हैं, उसको पता है कि उसको ठक 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 कौन सी चीजें हटानी है. दिस इज व्हाट मशीन लर्निंग इज डूइंग. मूविंग ऑन, नहीं सॉरी ये हो गया. फिर इसके बाद सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम में हमने वहां पे कैमरा से चीजें ली थी, चीजें लेने के बाद उसको नेटवर्क में डिवाइड किया था. नेटवर्क में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट चीजों को रिकग्नाइज कर पा रहा है. मशीन लर्निंग जो है वो डिफरेंट चीजों को रिकग्नाइज कर पा रहा है. ये है, ये है, ये गाड़ी है, ये इंसान है, ये फला है, ये ढमकड़ा है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये हर चीज कर रहा है. वो मशीन लर्निंग में वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है. उसने पहले वाले ने कैटेगराइज कर दिया था, अब उसने आइडेंटिफाई कर लिया ये है, ये है, ये है, ये है. ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कि भाई हमने ये लेना है, इस पे चलना है. अब डिसीजन मेकिंग का स्टेप शुरू होने वाला है. ठीक है, सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन लेने में हेल्प करेगा उस मशीन को, उस गाड़ी को डिसीजन लेने में कि अब गाड़ी है तो स्टॉप करना है. वो पहले तो शायद सिर्फ रिकग्नाइज हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, वो हो रहा था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, रिजल्ट्स दे रहा है. बेस्ड ऑन ऑल दोज थिंग्स रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है. तो यानी कि वो आपका ही डेटा होता है जिसके बेसिस पे आपको चैट जीपीटी रिजल्ट्स देना शुरू करेगा. कमिंग बैक टू स्क्वायर वन, आप को अगर लगता है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जवाब नहीं आ रहा, आप कंटिन्यूस अपनी अंडरस्टैंडिंग को वहां पे स्टैब्लिश करते जाओ. इट इज गोइंग टू डेवलप द डेटाबेस फॉर यू. मुझे अगर वो डिफरेंशिएट, बात वही है कि नॉलेज होना जरूरी है. नॉलेज नहीं होगी तो चैट जीपीटी किसी काम का नहीं है. ठीक है, जैसे हमने लेसन प्लान जनरेट किया, तो लेसन प्लान जनरेट किया, उसने ठक 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 वो जनरलाइज किस्म का लेसन प्लान डाल दिया. क्यों, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपको डिफरेंशिएशन पता है. आप वहां पे ऐड करोगे अपने रिस्पॉन्स से कि आई नीड डिफरेंशिएटेड लेसन प्लान, तो वो डिफरेंशिएशन डाल देगा. आप कहोगे आई नीड इंक्लूसिव लेसन प्लान, वो इंक्लूसिव देगा. आई नीड एक्टिव लर्निंग इन माई लेसन प्लान, एक्टिव लर्निंग आ जाएगी. तो जितना आपका सर्च वर्ड स्ट्रांग होगा उतना आपका रिस्पॉन्स बेहतर होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा. ठीक है, मेकिंग सेंस. अच्छा, अब इतना सारा हमने समझा, सीखा, ये वो. हाँ, व्हाई इज इट पेड, ऑफ कोर्स इतना उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो कहीं ना कहीं तो वो
रिकवर करने की कोशिश नहीं, वो खैर पेड वाला एक फायदा, इट्स अ सेपरेट सेगमेंट। कोशिश ये कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज दे नो के मोस्ट ऑफ द पीपल मे नॉट गो फॉर पेड। पेड इज ऑलवेज कन्वीनियंस। पेड हमेशा क्या होता है, पेड इज ऑलवेज कन्वीनियंस। आपको फ्री में एक सेगमेंट मिलेगा, पेड क्या होगा, कन्वीनियंस होगा। उनको भी कमाना है जाहिर है, और आपको कन्वीनियंस चाहिए। अगर आपको फास्ट होना है तो फिर ठीक है, आप पेड वाला वर्जन ले लो। पेड वाले वर्जन में ये होगा कि आप डाउनलोड करके भी उसी स्पीड में यूज कर पाओगे और उतना फ्रीक्वेंटली यूज कर पाओगे। सिस्टम चेंज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, अच्छा डिटेल वो देगा, आपके डेटा को ज्यादा ऑर्गेनाइज करेगा, ज्यादा आपके डेटा पे काम करेगा, XYZ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री वाला बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएगा। फ्री वाला भी चल सकता है और बहुत अच्छा चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूजिंग इट। ठीक है, इट इज स्टिल गोइंग टू कलेक्ट योर डेटा, लेकिन वो ऑनलाइन यूज करना पड़ेगा बस। पेड इज ऑलवेज कन्वीनियंस, सिंपल। पेड इज ऑलवेज कन्वीनियंस। हर चीज हम जो फ्री यूज, हम गूगल ईमेल यूज कर रहे हैं ना, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हम गूगल मीट पे जाते हैं तो वो कहता है कि भाई 1 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हो फ्री, उसके बाद पेड है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 4 घंटे की मीटिंग करनी है, जैसे जूम है, जूम 1 घंटे के लिए फ्री है, 40 मिनट्स के लिए फ्री है, लेकिन अगर मुझे 2 घंटे यूज करना है तो 2 घंटे यूज करना है, इज माई कन्वीनियंस। मैं बार बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करूंगी, मैं कमा रही हूँ उससे, तभी मैं यूज कर रही हूँ। तो ठीक है, अगर मेरे कन्वीनियंस के लिए कोई चीज यूज कर रही है आप, तो फिर डेफिनेटली आपको पे करना पड़ेगा। तो मैंने भी जूम के लिए पे किया, सिंपल। सो पेइंग इज ऑलवेज कन्वीनियंस, एक्स्ट्रा कन्वीनियंस। तो फ्री मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। पेड वाला इज जस्ट एन एक्स्ट्रा कन्वीनियंस। ठीक है, चले। नाउ जैसे हमने ये कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, इट इज वर्किंग ऑन एनालाइजिंग द डेटा। अब ये करके आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एनालाइज कर रहा है कि डेटा कहाँ कहाँ है और इसके हिसाब से एक्शन क्या क्या ले रहे हैं। ठीक है, सारा उसने बता दिया कि भाई ये लेना, ये है, ये है, ये है, ये है, ये वो डीप लर्निंग ने बता दिया, ये इसने बता दिया, उसने नेटवर्क में डिजाइन कर दिया, इसने ये कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है कि आप ये करना है, यहाँ पे गाड़ी आएगी तो स्टॉप करना है, यहाँ गाड़ी आएगी तो टर्न करना है, यहाँ से अगर मुझे ओवरटेक करना है तो यहाँ से चले जाना है, अगर इस बंदे को जल्दी है तो बेस्ड ऑन दिस डेटा टक 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 मुझे किस तरह से अपनी स्पीड को मेंटेन करना है, इस रोड पे कितनी। सो इट इज एक्चुअली, सदफ ने कह दिया कि बहुत सारा आपने मिस पढ़ा दिया, आप समझ मुझसे बाहर हो गया, आप रिकॉर्डिंग देते। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूं। आई इंटेंड टू डू इट, सो लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स थिंक अबाउट इट। क्योंकि अगर मैंने ये कह दिया ना रिकॉर्डिंग दे दूंगी, तो मुझे पता है कि लोग यहाँ से जो है ना वो रिलैक्स हो जाएंगे, चिल हो जाएंगे। आई डोंट माइंड यू बीइंग चिल, लेकिन ये बी कनेक्टेड विथ मी एंड बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्सेज वील डिसाइड के देना या नहीं देना है। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर साइकिल। वही वाली बात कि हमने जो स्टार्ट की थी कि डीप लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल नेटवर्क्स क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवेंचुअली क्या है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंपाइलिंग ऑल दैट डेटा एंड प्रोवाइडिंग रिजल्ट्स। वो हर चीज यहाँ से ले रहा है और अपना एक रिजल्ट जनरेट कर रहा है, और वही है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आपसे ही आपका वो ले रहा है, डेटाबेस ले रहा है, उसके पास बहुत है। अच्छा, रिस्पॉन्सेस, एक और भी वो जाता है कि जो सवाल किसी ने पूछा भी था कि हाउ ऑथेंटिक इज चैट जीपीटी। ठीक है ना, तो मैं एक काम ये करती हूँ कि आपको एक चीज दिखाती हूँ, एक स्क्रीन दिखाती हूँ। सबसे पहले जब आप चैट जीपीटी खोलते हो तो सबसे पहली जो स्क्रीन आती है ना, वो कुछ इस तरह की होती है। मैं करके भी दिखाऊंगी आपको, लेकिन वो स्क्रीन कुछ इस तरीके की होती है या नहीं होती है? पहली स्क्रीन देखिए, चैट जीपीटी की हमेशा पहली स्क्रीन ये होती है। यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दिया हुआ है। हम जो है ना बहुत चीजों को डिटेल में नहीं पढ़ते, इसलिए हमें बहुत सारी चीज समझ नहीं आती, लेकिन अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो सिंपल टर्म्स में किस तरह से यूज करती है। तो क्या करता है ये? अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज को समझिएगा। मैंने लिखा कि पाकिस्तान कब क्रिएट हुआ था? 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान कब क्रिएट हुआ था? अगर मैं ये चैट जीपीटी पे डालती हूँ तो डेफिनेटली आंसर आएगा 14 अगस्त 1947। अब ये हो क्या रहा है बेसिकली बैकहैंड पे कि अगर इस चीज का डेटा इंटरनेट पे, ये इंटरनेट से ही डेटा प्रोसेस करके ला रहा है, आपको फिल्टर करके लाके दे रहा है। अगर इंटरनेट पे 100 लोग, अगर 100 लोग है, टोटल 100 लोग है, उसमें से 80 लोगों ने ये लिखा है कि पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑन 14 अगस्त 1947, तो वो 80 लोगों से रिस्पॉन्स लाके आपको दे देगा, क्योंकि उसको लगता है कि वो डेटा ऑथेंटिक है। मेकिंग सेंस? पैटर्न्स डेवलप कर रहा है, लोगों ने क्या डेटा डाला हुआ है उसके बेसिस पे वो पैटर्न डेवलप कर रहा है।
लेकिन अगर 90% लोगों ने ये लिखा है कि पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑन 15 अगस्त 1947, तो वो लाके दिखा देगा। ठीक है, वो इंटरनेट से ही डेटा ला रहा है, वहीं से उठा रहा है, वहीं से उसको वो कर रहा है, कंपाइल कर रहा है और लाके आपको दे रहा है। दैट मीन्स हम जो नेट पे सर्च करते हैं उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, चैट जीपीटी में हमें थोड़ा टाइम कम लगेगा। ऑथेंटिकेट करना ये हमारा ही काम है, अभी भी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ऑथेंटिक, किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट करना हमारा ही काम है। इसका अपना कोई वो नहीं है। इट डज नॉट हैव अ ब्रेन, इट जस्ट इज वर्किंग ऑन डेटा दैट इट हैज, लॉट ऑफ डेटा, उसके बाद बहुत सारा डेटा है, उसको वो ऑर्गेनाइज करके आपको लाके दे रहा है। अब ये क्या क्या कर सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। हाँ, इट्स अ मशीन, इट इज नॉट जनरेटिंग डेटा फॉर यू, इट इज कलेक्टिंग पूरी दुनिया से डेटा लाके आपको एक रिस्पॉन्स लाके दे रहा है। ये दे। ओके, सबसे पहले जो चैट जीपीटी की, जब आप जाते हैं ना, जब आप लॉग इन करते हैं चैट जीपीटी पे, तो सबसे पहली स्क्रीन ये आती है कि आपने उसने एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, कैपेबिलिटीज व्हाट, देखिए वो लिखा है रिमेंबर व्हाट यूजर सेड अर्लियर इन द कॉन्वर्सेशन। अच्छा, ये एक और चीज है जो कि मशीन लर्निंग का हिस्सा है, कि वो पिछली कॉन्वर्सेशन को भी आपकी याद रख रहा है। उससे क्या होता है कि जब आप कोई भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो, जैसे हम लोगों से बात करते हैं ना, वो उसने उस सिस्टम को चैट जीपीटी में डाल दिया है कि आपने ये याद रखना है कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ चैट जीपीटी की, तो आपके सवाल भी उसी नौयत के आएंगे, चैट जीपीटी के आएंगे। लेकिन जाहिर है अगर मैं कल आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा रही हूँ तो आपके सारे सवाल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आएंगे। तो ये न्यू चैट है, हर दफा आपको एक न्यू चैट जनरेट करनी पड़ेगी कि भाई अब मैंने कुछ और बात करनी है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो न्यू चैट जनरेट की और तक आपने बात की, लेकिन वो पिछली कॉन्वर्सेशन याद करता रहेगा। मैं कहूंगी मुझे लेसन प्लान चाहिए मैथ्स का, क्लास 3 का, वो मुझे एक दादा 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 लेसन प्लान देगा। मैं कहूंगी नहीं इसमें डिफरेंशिएशन डाल दो, तो वो दादा दादा दादा, उसको याद है कि मैंने पिछली दफा उसको कहा है कि मुझे क्लास 3 का मैथ्स देना है, तो वो क्लास 3 के मैथ्स में ही डिफरेंशिएशन डालेगा। मैं उसको कहूंगी अच्छा डिफरेंशिएशन डालती है, इसमें इंक्लूजन भी डाल दो, एड इंक्लूजन टू इट। तो वो कहेगा चलो ठीक है, इसमें वो मैथ्स का ही लेसन है, क्लास 3 का ही लेसन है, इसमें इनको डिफरेंशिएशन चाहिए था, अब इसको इंक्लूजन भी चाहिए, तो और वो जनरेट करेगा। सो द मोर यू नो एंड द मोर यू आस्क, they are going to incorporate that and give you the answers. हाँ, जाएंगे कैसे वो भी मैं बताती हूँ, थोड़ा सा होल्ड ऑन मैन। बिल्कुल ऐसे जाते हैं चैट जीपीटी और किस तरह से वर्किंग करते हैं ये भी बता रही हूँ मैं। अच्छा, रिमेंबर्स व्हाट यूजर सेड, अब यहाँ पे उन्होंने खुद ही चैट जीपीटी का ही मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं। अच्छा, गॉट एनी क्रिएटिव आइडिया फॉर 10-year-old बर्थडे। अब यहाँ पे आप जितना स्पेसिफिक आंसर करोगे, क्वेश्चन करोगे, उतना स्पेसिफिक जवाब देगा। अब उसने आपने अगर सवाल पूछा कि कोई आइडिया है आपके पास कि 10 साल के बच्चे की अगर मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, तो ये यहाँ पे आपको फॉलो अप की करेक्शंस भी देता है। अच्छा ठीक है, पहले भी आपने कहा था बर्थडे सेलिब्रेशन, अब आपने कहा कि 10-year-old की है, चलो ठीक है, उन्होंने आपको करेक्शन करवाएगा कि 10 ईयर की जो है बर्थडे आप इस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हो, आजकल ये ट्रेंड्स हैं। अब वो अगेन डेटा वो वहीं से कलेक्ट कर रहा है, आपको लाके स्पेसिफिकली एक जगह दे रहा है, टाइम बचा रहा है आपका और कुछ नहीं है। ठीक है, हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपने कोई ऐसी स्क्रिप्ट मांगी कि भाई मैंने हैक करना है किसी का सिस्टम, कहेगा सॉरी हम इस चीज के लिए ट्रेन नहीं है, वो देगा ही नहीं आपको डेटा। कोई गलत चीज के लिए वो आपको डेटा देगा ही नहीं, वो डिक्लाइन कर देगा, सॉरी आई डोंट नॉट हैव दिस डेटा। वो बता देगा आपको कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो कंप्लीट नहीं है, या तो वो ऐसा है कि जो नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। जैसे अगर मैं ये पूछूं मुझे बंदूक बनानी है, कहेगा सॉरी ऐसा कोई डेटा मेरे पास नहीं है। सो लीगैलिटीज का ख्याल उसने खुद भी रखा हुआ है चीजों में। ठीक है ना, अब लिमिटेशंस पे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस क्या है, अक्सर और बेशतर पहली चीज, अब लिमिटेशन अब करीब जाके पड़ता है, जो कि लोगों ने कहा था ना कितना ऑथेंटिक है डेटा, लिमिटेशंस पे क्लोजअप लेते हैं। क्या लिखा है पहला, इट कैन ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। क्या मतलब हुआ इसका, may occasionally produce harmful instructions or biased content।
बायस कंटेंट का यहाँ पे मतलब बताओ क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इंडिया पाकिस्तान का जो वो हुआ जो सब कॉन्टिनेंट वाला जो डिवीजन हुआ, उसमें हमारा ये हुआ ना कि हमें कुछ पानी मिला और कुछ नहीं मिला। अब मैं एक बंदा हूँ, मैं पाकिस्तानी बंदा हूँ, तो मैं इन्फॉर्मेशन लिखूंगी कि भाई जो पानी जो है वो हम पे नहीं कंट्रोल कर लिया गया, हमें नहीं दिया गया वगैरह, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। लेकिन एक इंडियन जो लिखेगा इंटरनेट पे, वो ये लिखेगा कि हमने तो सब कुछ दिया था। अब उसकी इंफॉर्मेशन भी इंटरनेट पे है, हमारी भी इंफॉर्मेशन। अब कितनी इंफॉर्मेशन, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसी के बेसिस पे वो रिस्पॉन्स दे देगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि रिस्पॉन्स सही है इसका मतलब कि ये रिस्पॉन्स सही है। अगर बहुत सारे इंडियंस ने लिख दिया कि हमने तो ये सब कुछ दे दिया और लुटा दिया, और पाकिस्तानियों को तो अगर जी रहे थे तो वो हमारी वजह से जी रहे थे। अगर 1000 लोगों ने ये लिख दिया और सिर्फ 200 लोगों ने ये लिखा है कि जो है वो हमें नहीं मिला, सब कुछ जो हमारे राइट्स थे वो नहीं मिले, तो वो तो वही बताएगा ना जो 1000 लोगों ने लिखा था। बिल्कुल, ओपिनियन बेस्ड इंफॉर्मेशन में गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ऑथेंटिसिटी का क्या हुआ? ठीक है। ओकेजनली इट कैन प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस और बायस कंटेंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। एट स्टेक, एग्जैक्टली। सो इट कैन बी ऑथेंटिक अगर आप जनरलाइज चीजें यूज कर रहे हो, अपनी लेसन प्लानिंग के लिए यूज कर रहे हो, रिसर्च के लिए यूज कर रहे हो। इट कैन बी हेल्पफुल, बट ऑथेंटिसिटी इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन मार्क। सो ऑथेंटिसिटी अगर आपके पास प्रीवियस कोई बेस थे ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, यू कैन स्टिल चेक। ठीक है ना? एंड इट हैज अ लिमिटेड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इवेंट आफ्टर 2021। मतलब 2021 के बाद उसके पास डेटा नहीं है। डेटा कलेक्ट किया है ना उन्होंने, यहाँ से वहां से वहां से वहां से डेटा कलेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहां से वो डेटा का पैटर्न डेवलप करके और आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन 2021 के बाद का डेटा नहीं है, लिमिटेड है उसके पास। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर यूज करते हो, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर यूज करते हो, बिंग यूज करते हो, वहां पे उसके पास 2021 का डेटा ज्यादा है। अब वो जाहिर है अपने प्लेटफॉर्म पे लाएंगे ना लोगों को, इधर आ जाओ। तो अगर बिंग यूज करते हो जो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों का है ब्राउजर, क्रोम नहीं यूज करो, बिंग यूज करो, तो आपके पास वो ज्यादा 21 के बाद का भी डेटा उसमें जनरेट होता जा रहा है। लेकिन आप दूसरे ब्राउजर्स के लिए वो 21 के बाद का डेटा नहीं दे रहा। इट कैन बी हेल्पफुल फॉर जनरलाइज क्वेश्चन, जनरलाइज्ड वो। आपके तकरीबन सारे सवाल के जवाब आ गए या कोई बाकी है? अब कैसे यूज करते हैं वो बाकी है, आई नो दैट, मैं वो दिखा रही हूँ आपको, वो मैं करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है। आर वी क्लियर ऑन व्हाट चैट जीपीटी इज, हाउ इट हैज डेवलप्ड, डेटा कहाँ से आ रहा है, ऑथेंटिक कितना है, ये सारे सवाल जवाब हो गए। हाउ बाकी है, बिल्कुल हाउ हमेशा रोक के रखना चाहिए, मानो लोग उसी बैठ के होते हैं। अब हम आते हैं, व्हाट इज चैट जीपीटी हमने कर लिया, हाउ टू यूज इट, आइडियाज क्या होने चाहिए कि क्या किस तरह से यूज करना है। अभी किसी ने एक और भी सवाल पूछा था, मैंने किसी का सवाल मिस नहीं किया है कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए। वी विल कम बैक टू दैट। ठीक है। डोंट वरी कि अगर किसी ने सवाल पूछा उसको लग रहा है मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, मैंने पढ़ लिया है, मैं उसको होल्ड करके रखा हुआ होता है। आपके सारे सवाल आप डाल दिया करें, कोई मसला नहीं है, मैं होल्ड कर लेती हूँ, मुझे पता होता है किसको क्या जवाब, किसको कौन सी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आई विल गेट बैक टू दैट वन ऑल्सो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू यूज चैट जीपीटी। ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे, वही वाली बात की वो वर्किंग करेंगे। इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन को अनशेयर करूंगी और फिर से शेयर करूंगी ताकि मैं आपको आपके अपने ब्राउजर पे खोल के दिखा सकूं। अच्छा, मैं दो चीजें खोल रही हूँ इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। ओके, क्रोम पे खोल के करते हैं। क्रोम पे मेरा ऑलरेडी बहुत सारा डेटा है, खबरदार जो मेरा डेटा पड़ा है तो। ओके, लेट मी सी। ओके, मैं आ रही हूँ, फिक्र ना करें, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। ओके, कुछ गड़बड़ होगी तो हम रीडू करेंगे, ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। ओके,
मैंने अभी सिर्फ ब्राउजर खोला है, कुछ भी नहीं किया है। हाँ, मैं इस ब्राउजर पर लॉग इन हुई भी हूँ, आपको दिख रहा होगा मेरा यहाँ पे तस्वीर आ रही है, दैट मीन मैं लॉग इन हुई भी हूँ उसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे मैं आ रही हूँ, सिर्फ लिख रही हूँ चैट जीपीटी, ब्राउजर पे सिर्फ ये लिख रही हूँ चैट जीपीटी, एंटर। अच्छा, मेरे केस में इसने मुझे खोल दिया है, लेकिन अगर यहाँ चैट जीटीपी डॉट कॉम से हटा देती हूँ, रुकिएगा वापस से करती हूँ एक दफा। अरे है चैट जीपीटी, ये रहा पहला, ये है इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। अगर मैं सिर्फ गूगल सर्च करती हूँ, मैं इस पेज पे लैंड करूंगी, ठीक है। अगर मैं सिर्फ गूगल सर्च करती हूँ तो मैं इस पेज पे लैंड करूंगी। इस पेज पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है ट्राई चैट जीपीटी, इसको क्लिक करें। जैसे इस पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा या तो लॉग इन करो या साइन अप करो। अगर आपने आज तक इस्तेमाल नहीं किया तो आपने साइन अप करना है। साइन अप कैसे करना है, कोई भी जीमेल की आईडी डाल देंगे, टक 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 टक। अब ये साइन अप क्यों करना है, डेटा कलेक्शन हो रही है, आपके ईमेल के बेसिस पे आपकी डेटा कलेक्ट हो रहा है। ये इसका आईडी है, अच्छा ठीक है, इसका डेटा ये है, ठीक है। सो अगर तो आपने साइन अप नहीं किया तो साइन अप कर ले, तो वो आपको साइन अप का सिंपल प्रोसेस है कि वो आपको बोलेगा ईमेल एड्रेस से कनेक्ट कर ले या कुछ भी इस तरह से। और अगर आपका ऑलरेडी साइन अप कर चुके हो तो आप लॉग इन करोगे। मैं लॉग इन करने की ट्राई करती हूँ, होपफुली हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं गूगल के उससे लॉग इन करने की कोशिश करूंगी। अकाउंट वो कह रहा है कोई अकाउंट यूज कर लो, साइमा इमरान वाला यूज कर लिया मैंने। अब यहाँ पे वाइल वी आर हैविंग सेफ गार्ड, अब इसमें थोड़ा सा यू नो, नेक्स्ट नेक्स्ट, डन। ये मेरा पहला पेज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, क्वांटम कंप्यूटिंग वाला, जो मैंने आपको कहा ना पहला पेज क्या आता है, तो ये रहा पहला पेज। अब इससे मैंने जितने भी सवाल पूछे थे ये देखें। अब मेरे पास 3-4 आईडी हैं, तो आपको लग रहा होगा मैंने बहुत कम यूज किया हुआ है लेकिन मेरे पास 3-4 आईडी हैं, तो ये लिमिटेड, ये वाला आईडी बहुत कम यूज होता है। लेकिन यस सी, आई ऑलरेडी हैव ऑल दीज क्वेश्चंस सेव्ड ओवर हियर। मैंने अप्रैल में कौन से सवाल पूछे थे, मार्च में कौन से पूछे थे, जनवरी में कौन से पूछे थे, ये सारा इधर है। अब यहाँ पे आपने अपना, इट्स जस्ट लाइक यूर टॉकिंग टू समबडी, ठीक है। सो लेट्स से मैं कहती हूँ कि प्लीज राइट अ लेसन प्लान फॉर मी। अब मैंने बहुत लिमिटेड आंसर क्वेश्चन पूछा है। श्योर, लेसन प्लान में ये डाल दो, 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 कुछ भी नहीं आया। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, कंक्लूजन होनी चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए, एक्सटेंशन होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अब ये इसने अपना ओपिनियटेड बेस्ड जो सारी जगह से डेटा कलेक्ट किया था, उसने बता दिया कि ये सब चीजें होनी चाहिए। चले, मैं चाहती हूँ पहली वाली चीज पे। उसने कहा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट डिफाइन करो, टॉपिक डिफाइन करो, ग्रेड डिफाइन करो, टाइम फ्रेम डिफाइन करो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो। चलो, मैं कहती हूँ कि मुझे सब्जेक्ट है मेरा इंग्लिश पढ़ाना है मुझे। हाउ अबाउट creating a lesson plan for English। इंग्लिश का ले लेती हूँ। दूसरा ये बोला टॉपिक क्या होना चाहिए, टॉपिक होगा क्रिएटिव राइट नहीं, इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट, इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट, ग्रेड लेवल फॉर क्लास 6, एंड टाइम फ्रेम पूछ रहा है 40 मिनट्स, फॉर 40 मिनट्स। ये मैंने अपने क्राइटेरिया को डिफाइन करने की कोशिश की। जो जो हेडिंग्स उसने पहले दी थी, उसी हेडिंग के बेसिस पर उसने मेरा प्लान जनरेट कर दिया। हाउ अबाउट एडिंग active learning to this plan, to this plan। पिछले ही प्लान की बात कर रही हूँ कि पिछले प्लान में आकर आपने एक्टिव लर्निंग डालनी है तो क्या करूं।
फायजा डाउनलोड करने में सिर्फ आपको ये इश्यू आएगा कि कुछ रिस्पॉन्सेज जनरेट करने के बाद वो डीएक्टिवेट हो जाएगा. इट विल नॉट बी, इट्स बेटर टू यूज इट ऑनलाइन. हाँ जी, कोई रिस्पॉन्स, कोई क्वेश्चन, कोई एक्साइटमेंट, कुछ तो बताए. इंटरेस्टिंग हो गया. थैंक यू सो मच बुशरा. एनी अदर क्वेश्चन, आई मीन एनी अदर थिंग दैट्स कमिंग टू योर माइंड? हाउ अबाउट अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग? नहीं ओपन हुआ मेरे पास. क्या क्या ओपन नहीं हो रहा आपके पास? चैट जीपीटी ओपन नहीं हो रहा? एक काम करें, chat.openai.com, ये इससे डायरेक्ट चले जाएं. कॉपी करके भेज रही हूँ आपको, ये ले, इससे चले जाए. ठीक है, लेसन प्लान डेवलप कर लें, आर्टिकल्स डेवलप कर लें. आपने बेसिकली सिर्फ बात इसी तरह से करनी है. अब जैसे लेसन प्लान मेरा जनरेट हो गया, लेकिन अब उसने क्या कहा है, थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ. लेट्स से इसने मुझे कहा है कि आपकी इंट्रोडक्शन में बिगिन बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट एन इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट इज एंड इट्स पर्पस. अब ये मैं उठाती हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी. वो कह रहे ना कि डिटेल नहीं है, तो मैं कहूंगी कैन यू एक्सप्लेन हाउ. मैंने पहला वाला जो सेंटेंस है ना इंट्रोडक्शन वाला से, वो कॉपी किया. हाउ टू बिगिन बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट एन इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट इज. इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट क्या है और क्या पर्पस होता है, उसको करूं कैसे मैं. आपने सिर्फ ये लिखा था, उसने ये सिर्फ लिखा था ना कि आप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट को. अब मैं कह रही हूँ कि मैं कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊं. मैं एंटर कर देती हूँ. श्योर. When you begin the lesson on informative text, it's important to provide your students with clear understanding of what informative text is. तो informative text का definition बता दिया, example बता दिया, purpose बता दिया, importance बता दिया. तो अपनी चीजों को डिटेल्ड करने के लिए, अगर आपको जनरेट करने के बाद भी आपको लगता है कि आपको इसकी समझ नहीं आ रही है, तो समझ के लिए पूछे कि भाई अगर आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने डिफरेंशिएशन डाला है कि प्रोवाइड मॉडिफाइड टेक्स्ट विद सिंपलर वोकैबुलरी. अब ये मैंने कॉपी किया और मैंने सिंपल ये लिख दिया हाउ टू, और मैंने सवाल पूछ लिया उससे हाउ टू प्रोवाइड मॉडिफाइड टेक्स्ट विद सिंपलर वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो अब उसने वो उसको एक्सप्लेन कर दिया कि सिंपल वोकैबुलरी हो, ऐसा टेक्स्ट ले ले जिसमें सिंपल वोकैबुलरी हो, छोटे सेंटेंसेस हो, उसके अंदर कुछ तस्वीरें हो, कुछ ऑडियो हो जिसके अंदर, या कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ हुआ हो, तो इससे डिफरेंशिएशन हो जाएगी. ओके. फातिमा कह रही है प्लेजरिज्म कैसे चेक करें. एक और एप्लीकेशन है chat.ai. chat.ai पे जाके आप जो है इसकी प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं. हर दफा ये कोशिश करता है एक नया रिस्पॉन्स जनरेट करने का, लेकिन बहुत दफा ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ही रिपीटेड जनरलाइज किस्म के टेक्स्ट जनरेट हो रहे होते हैं. तो अगेन एज आई सेड के इट इज नॉट टू बी यूज्ड फॉर आर्टिकल राइटिंग, या आर्टिकल राइटिंग चले फिर कर ले, लेकिन जैसे आप कोई ऑफिशियल वो कर रहे हैं, कोई रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं, तो इट इज सजेस्टेड नॉट टू यूज दिस, बिकॉज बॉट राइटिंग का अभी तक तो प्लेजरिज्म चेक आया नहीं है. वही वाली बात है कि जो दूसरे सिस्टम है ना वो डेवलप नहीं हुए, तो प्लेजरिज्म उसमें जो है वो आइडेंटिफाई नहीं होता कि प्लेजराइज किया हुआ है. तो ये चैट राइटिंग, बॉट राइटिंग जो है ना, वो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर में आइडेंटिफाई नहीं होगी, लेकिन बॉट राइटिंग का जो एक सॉफ्टवेयर है उसमें आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ये बॉट ने लिखा है, यानी रोबोट ने लिखा है. रोबोट हो गया, आई बॉट हो गया, तो इंटरनेट बॉट कहते हैं ना इसको हम. इंटरनेट बॉट ने लिखा है, तो ये जो है वो इधर नहीं आइडेंटिफाई होगा, प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर में आइडेंटिफाई नहीं होगा, लेकिन आई बॉट की चेकिंग हो सकती है कि ये आई बॉट क्रिएटेड है या नहीं है. Those who are concerned about privacy and data, can they use in अमरीन द मोर डेटा. देखिए अगर तो वो आप कौन सा डेटा यूज कर रहे हो जो कि आपको डर लग रहा है. आप बैंक वगैरह की चीजें तो नहीं डालोगे ना इसमें. आप अगर ये चीजें डाल रहे हो तो इट्स नॉट अ बिग डील. ये आपका डेटा किसी और को नहीं दे रहा है. जैसे आपका जीमेल में आपके पास चीजें सिर्फ आपके पास आ रही होती है, इसी तरह इसमें भी सिर्फ चीजें आपके पास ही आ रही है, किसी और के पास नहीं जा रही. हाँ, वेरी गुड Birchis. That's a very interesting question कि students should be, how can academic researcher can use it ethically. आप आर्टिकल्स फाइंड आउट करें. यू कैन तैयबा. अब देखिए हर दफा जब कोशिश करिएगा कि जब आप टॉपिक चेंज करें तो आप ये न्यू चैट पे चले जाएं. तो अब यहाँ पे मेरे पास टॉपिक हो गया, मैं न्यू चैट पे चली जाती हूँ. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अगर मुझे कभी भी बैक हैंड पे वापस उस लेसन प्लान पे जाना, मैं जा सकती हूँ. ये रहा, आज मैंने क्या सर्च किया था, लेसन प्लान. ये इस पे क्लिक करूंगी तो मेरा वही डेटा सारा जनरेट होना चाहिए. हाँ,
लेसन प्लान ये रहा। तो पुराना जितना भी मैंने रिसर्च किया है, जो भी मैंने फाइंड आउट किया है, जो मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया है, वो सब इधर होगा। ठीक है। रूल्स फॉर क्लासरूम मैंने सर्च किया था, डिस्प्ले रूल्स फॉर क्लासरूम, तो इसने बता दिया कि ये रूल्स आप क्रिएट कर सकते हो। डज इट अलाउ टू डाउनलोड? एक मिनट है, चेक करते हैं इसको। मैंने कभी आज तक डाउनलोड किया नहीं, मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, इट वर्क्स फॉर मी। यहाँ पे दिया हुआ है फीडबैक देने वाली सीन दिया हुआ है, आप कॉपी कर ले, पेस्ट कर ले, सिंपल। आपकी हिस्ट्री में पूरा डिस्प्ले हो रहा होगा, ये रहा। Okay, there's a question कि do you recommend to use for teaching new syllabus which will begin from 2024? देखिए syllabus जो है उसमें कंटेंट वही रहता है, कंटेंट चेंज नहीं होता। अगर कंटेंट में कोई नई चीज आई है, जैसे इफ यू आर आस्किंग अबाउट समथिंग दैट हैज बीन डन इन 2024, अगर उसमें कोई ऐसा इवेंट है या कोई ऐसा इंसिडेंट है, तो उसके बारे में डेफिनेटली आप ये कर सकते हो कि वो इंसिडेंट आपको पूरा कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही 24 में आई है और जिसके बारे में उसको पता नहीं है, तो ये आपको रिस्पॉन्स देगा भी नहीं। अब यहाँ पे मैं अगर इसको न्यू चैट में, जैसे मैंने आपको कहा था कि लीगल इम्प्लीकेशन है, तो यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि हाउ टू क्रिएट an atom bomb. No, I'm expecting it's not going to give me an answer. Atom bomb की जगह item bomb लिख दिया, atom bomb. I'm sorry, I cannot provide instructions on how to create a bomb. No, it does not provide you. It still does not provide you picture based. हाँ, अब यहाँ पे हम आते हैं दूसरे. Can I also show how to generate 500? अच्छा देखिए, आपका जो word, आपका जो sentence है ना, वही मैं लिख रही हूँ तस्नीम. You are saying के generate आर्टिकल, जो आप सवाल पूछ रही है ना मुझसे, वो मुझे ना पूछे, चैट जीपीटी से पूछ ले. हाउ टू जनरेट, क्या लिखा है आपने, आर्टिकल अबाउट एजुकेशन टुडे. टॉपिक तो देना पड़ेगा ना, एजुकेशन टुडे ओवर 500 वर्ड्स. ठीक है, मैंने यही लिखा है, जो आपने बोला है वही मैंने लिखा है, वो कैपिटल लॉक लग गया, कोई बात नहीं. जनरेट आर्टिकल अबाउट एजुकेशन टुडे ओवर 500 वर्ड्स. आर्टिकल टॉपिक मैंने एजुकेशन टुडे डाल दिया. उसे पूरा 500 वर्ड का जनरेट कर दिया. अब मैं कह रही हूँ कि यार ये तो बहुत जेनेरिक किस्म का है. कैन यू एड रिसर्च, कैन यू एड साइटेशन. साइटेशन होती है ना, साइटेशन इन इट. आपको करेक्ट वर्ड यूज करना आना चाहिए. अब ये वो साइटेशन जहां से उसने उठाया है सारा, वो जो आपने करनी है ना प्लेजरिज्म वाला मसले, तो आप साइटेशन उठा ले. साइटेशन अब कैन यू एड इन टेक्स्ट citation to the article. ये ले, उसने इन टेक्स्ट साइटेशन भी बता दी, ये रहा. Okay, can you provide in text citation in APA format? आप जो बोले वो कर दें. Yes, it can make your questionnaire as well. Can you generate questionnaire for this research from parents?
क्वेश्चन अभी तो किसी से होना चाहिए ना, किससे ले रहे हैं आप? इट कैन जनरेट एनीथिंग एट ऑल। उर्दू में आंसर देता है, नहीं आ देता है? चलो ये भी पूछ लेते हैं। कैन, नए उस पर पूछते हैं, सबर करें। एग्जैक्टली, साइटेशंस ये करेक्ट और इनकरेक्ट प्रोवाइड करेगा, तो ये आपको चेक करनी पड़ेगी। अच्छा, न्यू जनरेट करते हैं। कैन यू टॉक इन उर्दू? जी हाँ, मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ। सवाल करना आना चाहिए, जवाब मिलेगा आपको। ओके, नाउ मूविंग बैक। ठीक है, इट्स एज इजी, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ। स्टॉप शेयर करने के बाद मैं आपसे वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे आते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि कुछ और चीजें मैंने आपसे शेयर करनी है। एक सवाल अभी भी बाकी है किसी का। नाउ somebody was asking कि इमेज बेस जनरेट करेगा चैट जीपीटी या नहीं करेगा, फला करेगा या नहीं करेगा, ये करेगा या नहीं करेगा। सो लेट मी टेल यू दिस थिंग। जी बिल्कुल। यस नादिया, इट इज डेंजरस बिकॉज इट इज गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमंस। अगर आप लोग इतने फास्ट नहीं होते, अगर आप एआई, वही वाली बात है कि हम बात में पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर हम यूज नहीं करेंगे तो कोई हमें रिप्लेस कर जाएगा। कोई ऐसा होगा जो फास्ट करेगा, तो जाहिर है आप रोज पीट रहे होंगे कि यार मैं लेसन प्लान बनाती हूँ तो मुझे 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं, वो 15 मिनट में बना के दे देता है कोई बंदा। तो जाहिर है वो कहेंगे कि इनको हायर कर देते, इनको फारिग करें। We don't want to do that, right? We don't want that to be happening. Okay, अब यहाँ पे किसी ने पूछा था कि images generate करता है नहीं करता है। So there are different applications by AI for different type of things. आपको यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, फिर मुझे आपसे एक सवाल भी पूछना है। जैसे वीडियो के लिए जो है वो 3 यहाँ पे एप्लीकेशन लिखी हुई हैं, इमेजेस के लिए लिखी हुई हैं, टेक्स्ट के लिए लिखी हुई है कि टेक्स्ट के लिए चैट जीपीटी है, नोशन एआई है, जैस्पर है। रिसर्च के लिए लिखी हुई है कि आप बेयरली यूज कर सकते हो, स्कॉलरली यूज कर सकते हो, बेयरली यूज कर सकते हो। तो डिजाइन के लिए लोका है, प्रेजेंटेशंस के लिए स्लाइड्स डॉट एआई है, तो ऑडियो के लिए जो है वो भी दी हुई है, प्रोडक्टिविटी के लिए भी दी हुई है। इसी तरह से और भी एप्लीकेशन यहाँ पे, राइटिंग, कोडिंग, रिसर्च, ट्विटर, प्रोडक्टिविटी, कंटेंट क्रिएशन, हर चीज के लिए आई ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ चैट जीपीटी इस्तेमाल किया जाए, मल्टीपल चीजें यूज की जा सकती हैं। अब अच्छा, नाला ना करे। ओके, अब यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है। मैं पॉसिबिलिटी बताऊंगी, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, 2-3 पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मेरे पास किसी की तस्वीर है, लेट्स से बानो की तस्वीर है, बानो को पता है मेरे पास उनकी तस्वीर है, मेरे पास बानो की तस्वीर है। मैंने वो तस्वीर ली, ठीक है, तस्वीर ली, बानो की वॉइस रिकॉर्ड की, जब मैं उनकी फोन पे मुझसे बात कर रही हूँ तो उनकी वॉइस रिकॉर्ड की। और मैंने ये काम किया कि मैंने वो एआई के प्लेटफॉर्म पे, मैं प्लेटफॉर्म नहीं बता रही हूँ, मैंने एआई के प्लेटफॉर्म पे उस तस्वीर को अपलोड किया, उस आवाज को अपलोड किया। और मैंने कोई बहुत कोई कुछ भी मैसेज जो मुझे दुनिया को देना था, वो मैसेज मैंने लिख दिया कि मुझे ये मैसेज बानो की आवाज में, बानो की तस्वीर के साथ चाहिए। मेरे पास एक वीडियो बन के आ जाती है जिसमें बानो की तस्वीर है, वो हिल भी रही हैं, ऐसे आंखें भी बंद कर रही हैं और बातें भी कर रही हैं, और उसके साथ उनकी आवाज में वो मैसेज रिकॉर्ड हो जाता है जो मैं उनसे बुलवाना चाहती हूँ। मेरे पास पूरी वीडियो बन के आ जाती है, और ये हो सकता है। आप बताएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या खतरा है? इट कैन बी गुड एंड इट कैन बी बैड। मैं बड़ी गंदी गंदी बातें रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं किसी के नाम से, अब क्या फायदा बानो? अब तो है आपकी तस्वीर मेरे पास, और तस्वीरें सबकी हैं, सबकी तस्वीरें बड़ी इजीली मिल सकती हैं। मैं किसी की भी तस्वीर उठा सकती हूँ और ये काम कर सकती हूँ। आपके फेसबुक पे कितनी तस्वीरें पड़ी हुई हैं।
सो हमें यहाँ पे उसका हर चीज का लीगल यूज, देखिए यूज तो बच्चे करेंगे, बच्चे भी करेंगे, बड़े भी करेंगे, हमें उसका लीगल यूज बच्चों को समझाना है, हमें उसकी इम्प्लीकेशन समझानी है, हमने उसकी हर चीज को समझाना है, हमने वहां क्लैरिटी, मैंने आपको वो डेंजर पॉइंट बता दिया, जैसे आप बच्चों को नहीं बताते कि आग में मत जाओ जल जाओगे, गर्म होती है जल जाओगे, मैं वही काम कर रही हूँ कि मैं आपको वो पॉइंट तक बता रही हूँ कि ये एआई उतना खतरनाक हो सकता है, यू नीड टू बी केयरफुल। बच्चों को यूज करने दे, ठीक है, उनसे कहे कि आइडियाज जनरेट करें और आइडियाज को सही करने के लिए ये यूज कर ले चैट जीपीटी, यानी कि उसकी ग्रामर को सही करने के लिए, अपने आइडिया को प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप चैट जीपीटी ये भी कर सकते हो कि आपने कहा कि मुझे जो है वो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे पानी को जनरेट करने के लिए मुझे जो है या हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल करना है पानी को वो करने के लिए, जनरेट करने के लिए या पानी को फ्लो डेवलप करने के लिए, तो मैं वहां पे लिख के वो चीज कर सकती हूँ, लेकिन फिर उस आइडिया को मैं या तो अपने आइडिया को मजीद रीराइट करने के लिए कि भाई मैं सोच रही हूँ कि ये किया जा सकता है इस तरीके से, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको लैंग्वेज में किस तरह से एक्सप्रेस करूँ, तो आई कैन यूज चैट जीपीटी टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्रॉपर लैंग्वेज। दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। बट जनरेटिंग आइडियाज फॉर चैट फ्रॉम चैट जीपीटी, वो आइडियाज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो आपका आइडिया कुछ नया आइडिया नहीं होगा फिर, देन इट्स यूजलेस ना। तो बेहतर ये होगा कि अपने आइडियाज को जनरेट करें, उसको रीफ्रेश करने के लिए, उसको सही तरीके से लिखने के लिए फॉर्मल आप लिख सकते हो चैट जीपीटी में, जैसे मैं हमेशा करती हूँ कि भाई मुझे ये फॉर्मल तरीके से ये लिखना है, लेकिन इसको फॉर्मल तरीके से लिखते हैं। मुझे लेटर चाहिए था, मैंने अपने आप को एसबीटी से सर्टिफाई करवाया, तो मुझे एक लेटर जनरेट करना था कि मुझे एसबीटी से अपने आप को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफाई कराना है, तो प्लीज मुझे एक फॉर्मल लेटर लिख के दे दे, और मुझे लेटर में ये चीजें होनी चाहिए, उसने ठक 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 जनरेट कर दिया। Why should I write a letter? It's a waste of time. बिल्कुल, बिल्कुल, exactly. Don't generate ideas from it. Try to use your ideas to rewrite it in a formal way, good way. बच्चों से ये कहे, लेकिन फॉर टीचर्स आई वुड सजेस्ट इफ यू आर क्रिएटिंग लेसन प्लान्स यूजिंग दिस परफेक्टली फाइन। अब इसमें भी मजीद, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि मुझे थिंक पैड शेयर से ये करवाना है, लिख के भेजने कि कैन यू कन्वर्ट दिस डिस्कशन इनटू थिंक पैड शेयर एक्टिविटी, हाउ टू परफॉर्म इट, वो आपको फॉरन थिंक प्रेशर डाल के दे देगा, कैसा थिंक प्रेशर इस तरह से करा दे। तो आपका लेसन प्लान में आइडियाज अगर आपको जितने पता होंगे उतने आप उसको बता सकोगे कि ये डाल दो ये डाल दो, तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि जल्दी लिख के दे देगा आपको। लेकिन आइडियाज कोशिश करें कि आपके हो, आपकी आपकी जो इंडिविजुअलिटी है ना, कि भाई मैं थिंक प्रेशर करा सकती हूँ, मैं जो है स्कॉलर क्या कहते हैं सोक्रेटिव सर्कल करा सकती हूँ, तो सोक्रेटिव सर्कल आपके दिमाग का जनरेशन होगा, वो नहीं बताएगा आपको ज्यादा शायद, लेकिन आप मांगेंगे कि भाई ऐड सम टीचिंग स्ट्रेटजीज टू इट, तो वो ऐड कर देगा, बट अगेन यू नीड टू बी क्रिएटिव इन योर ओन वे। प्रॉम्प्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जितने आइडियाज होंगे मेक श्योर दैट यू इनकॉर्पोरेट दोस आइडियाज, जैसे मैंने अभी लेसन प्लान बताया उसमें मैं लिख देती हूँ कि आई वांट टीचिंग स्ट्रेटजीज टू बी इंक्लूडेड इन दिस, तो वो टीचिंग स्ट्रेटजीज के साथ आपको लेसन प्लान बता देगा। आप कहेंगे भाई आई वांट टू यूज दिस टू इट, वो ऐड कर देगा। सो द मोर, देखिए क्रिएटिविटी हमेशा इंसान का दिमाग होता है, वो एक मशीन है, वो उतना ही जवाब देगा जितना आप सवाल पूछोगे। प्रॉम्प्ट्स बिल्कुल आपको नॉर्मल लैंग्वेज में देने, इंसानी लैंग्वेज में। चैट जीपीटी में उन्होंने कोशिश यही की है कि इंसानी लैंग्वेज करती है कि ह्यूमंस किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, सो बी वेरी ओपन टू योर लैंग्वेज। मुझे ये बता दो, मुझे ऐड दिस टू इट, ये अगर ये कर दे तो अच्छा ये बताओ कि ये करते हैं, वो हर चीज में हाँ ही बोलेगा आपको, फिर आपको अपनी एनालाइजेशन, अपना एनालिसिस खुद करना है, क्या मैं ये करवा सकती हूँ, क्या ये वाकई सेंस बनेगा, दिस इज अ गुड आइडिया, लेट्स पिक दिस, लेट्स लीव दिस, बट इट इज गोइंग टू हेल्प यू, बजाय इसके कि वो जिस तरह से आप गूगल पे जाते थे और 10 आइडियाज आते थे आपके पास ये एक पेज पे आ गया है, इसकी पलक नोक संवारना ये आपका काम है, नोक पलक उल्टा बोल दिया, नोक पलक संवारना जो है वो आपका काम है, ठीक है। सो देर आर नंबर ऑफ अदर एप्लीकेशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमेजेस के लिए, इसके लिए आई माइट ब्रिंग इन अनदर सेशन सून, आई विल बी शेयरिंग द डिटेल्स विथ यू, जिसमें आप इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हो। आपको पता है ये भी हो सकता है कि आपने एआई को कहा कि मुझे एक खूबसूरत सी एशियन लड़की की तस्वीर बना के दो, तो वो लड़की जो कभी एग्जिस्ट नहीं करती है वो उसकी तस्वीर भी बना देगा। आप
100 पेज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो और उससे कहो कि इसकी प्रेजेंटेशन बना दे, तो वो आपको 10 स्लाइड की प्रेजेंटेशन बना के दे देगा कि इस ये पूरी डॉक्यूमेंट में ये 10 बातें मेंशन हुई हुई है. सो इट इज हाउ स्मार्टली यू आर यूजिंग इट. जो भी आपके पास कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट इसके पास अवेलेबल भी है. जैसे मैंने अभी यही इंग्लिश लेसन को, अगर मैं ये कहती कि इस लेसन को, इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट वाले लेसन को या स्टोरी राइटिंग वाले लेसन को जो है वो सिंड्रेला की स्टोरी से कनेक्ट कर दो, तो वो कर देगा, क्योंकि सिंड्रेला की स्टोरी होगी उसके पास. या कोई भी स्टोरी, जो नॉवेल्स आप पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, अगर आप कोई नॉवेल्स पढ़ा रहे हैं या ज्योग्राफी में कोई कंटेंट पढ़ा रहे हैं, तो इट विल हैव द डेटा. AI कैन ऑल्सो जनरेट इमेजेस जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते. आप कहेंगे कि मुझे एक ऐसा दरख्त चाहिए जिसपे स्टार्स लटक रहे हो, AI जनरेट कर देगा आपको. तो बच्चों के लिए वहां यूज किया जा सकता है, जहां पे आप ये कहें कि क्रिएटिव राइटिंग करवानी है बच्चों से, और बच्चे कहते हैं कि वो होता है ना कि फैसिनेटिव स्टोरीज आप करवाते हैं, फैसिनेशन वाली जो रियलिटी नहीं होती, तो उस पे भी आप जो है वो बच्चों से कहें कि आप स्टोरी लिखें और AI में अपनी इमेज जनरेट कर लें, कि वो रियलिटी नहीं है, जाहिर है उसकी इमेजेस आपको मिलेगी नहीं, लेकिन AI जनरेट करके दे देगा. स्टॉप जनरेट. अगर आपको लग रहा है कि वो जो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है दादिया, जो लिखा हुआ आ रहा है वो नहीं चाहिए आपको, तो उसको स्टॉप कर देंगे. स्टॉप जनरेटिंग दिस, और आवाज चेंज कर देंगे. जैसे हम लोगों को नहीं काटते हैं, कोई कोई बोल रहा होता है, हम कहते हैं रुको रुको, ये इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये था. वैसे ही बिल्कुल ह्यूमंस. स्टॉप जनरेटिंग का मतलब सिर्फ ये कि यू हैव टू स्टॉप दैट, कि भाई वो लिखे जा रहा है लिखे जा रहा है. आपने कहा कि 100 200 वर्ड्स का आपने ये लिख दो, अब वो लिखे जा रहे हैं. आपको पहली लाइन में समझ में आ गया कि यार ये मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, आपने रिस्पॉन्स चेंज करना है, तो आप कहें स्टॉप जनरेटिंग, दूसरा क्वेश्चन डालें. दोज हु आर विलिंग टू गेट द ई सर्टिफिकेट, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी, आप मुझे वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, और फिर इसके बाद मैं आपको जो है वो उसकी डिटेल्स कर दूंगी. ठीक है. All those who want certificate for this particular session, all you need to do is कि मैं आपको डिटेल्स एक फॉर्म सेंड करती हूँ, कल तक सेंड करती हूँ, उसको फिल कर लीजिएगा, देन आई विल सेंड यू द डिटेल्स एंड देन वी जनरेट द सर्टिफिकेट फॉर यू. ठीक है. श्योर. एनी क्वेश्चंस? How smartly you are asking, that is the only point over here, कि कितना smartly आप use कर रहे हो, that is the only key to the using of. Yes, thank you so much Faiza, I'm glad that I was able to answer most of the questions. कोशिश मेरी पूरी थी. प्रीवियस स्लाइड को शेयर करूं, दोनों दो है, दोनों शेयर कर देती हूँ. एक ये है, ठीक है. हाँ, सब पे आईडीज बनेगी, आईडीज के बगैर काम नहीं होगा. इवन जो कैनवा भी यूज कर रहे हैं, कैनवा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. हम बहुत सारी चीजें ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, अब हमें पता चल गया. थैंक यू सो मच तस्नीम, थैंक यू सो मच. मोस्ट ऑफ देम आर फ्री. मतलब एक वो होता है कि हर उसमें एप्लीकेशन में कुछ लिमिटेड यूज फ्री होता है, उसके बाद वो पेमेंट मांगते हैं, जैसे कि अदरवाइज पहले भी होता था. पैडलेट में 3 पैडलेट बना सकते हो, चौथे में वो पैसे मांग लेता है. जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशन में इसी तरह से होता है ना, कि मल्टीमीटर में भी आप 3 प्रेजेंटेशन बनाते हो, चौथे में वो पैसे मांगता है. सिमिलरली ऑल दीज एप्लीकेशन हैव द सेम इश्यूज, के कुछ लिमिटेड फ्री है, फिर उसके बाद पैसे मांगते हैं वो. बिंग इज बेटर ऑफ कोर्स. किसी ने पूछा है कि बिंग बेटर है यूज करने के लिए या क्रोम. अगर आप AI यूज करना चाहते हैं और 2021 के बाद का डेटा भी आपको चाहिए, तो बिंग यूज करें. बिंग के अंदर जो है ना, उसके ब्राउजर के अंदर ही कॉर्नर पे एक वो दिया हुआ होता है, आइकन दिया होता है, उसी में आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी खोल देगा, और उसमें थोड़ा और डिटेल इंफॉर्मेशन आ रही होती है. Always a pleasure to attend. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I'm glad, Faiza, that you were connected. yes, you can prepare worksheets also. वर्कशीट के क्वेश्चन जो है वो इससे जनरेट कर लें, चैट जीपीटी से. और अगर आपको आसानी से बनानी है तो कैनवा पे बना लें. कैनवा पे बहुत इजीली वर्कशीट बन जाती है.
If I ask questions of different topics for different people, how can AI filter that whether I am asking for myself or for others? आप अपने आईडी से लॉगिन करेगी तो पता चल जाएगा कि आप पूछ रही हैं. अगर आप दूसरों के आईडी से लॉगिन करेगी तो वो दूसरों के लिए आंसर करेगा. इसीलिए तो वो कह रहा है कि लॉगिन करें. अगर आप डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए भी आप पूछोगे तो डज नॉट मैटर, क्योंकि वो अपना डेटाबेस खुद ही क्रिएट कर रहा है कि भाई ये बंदा ये है और ये भी है. हिरा, करिकुलम क्रिएट करने के लिए अगर करिकुलम की आपको बेसिक्स पता है तो यस यू कैन क्रिएट. लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट आएगा. वो जनरलाइज स्टेटमेंट आपके किसी काम का नहीं है. उसका एक पूरा टेक्निक होती है. करिकुलम डेवलपमेंट की टेक्निक आपको पता है तो वो टेक्निक यूज करके आप करिकुलम यूज डेवलप कर सकते हैं. एक्सेल का काम, नॉट दैट आई नो अबाउट इट तैयबा, बट आई विल फाइंड आउट. एक्सेल में डेटा तो आपको ही खुद ही इंसर्ट करना पड़ेगा, तो व्हाट्स द पॉइंट. लेकिन फिर भी इट्स अ गुड क्वेश्चन. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? जस्ट ChatGPT access to paid data. What do you mean by paid data over here? Which paid data are you talking about? हाँ, सब पता चल जाता है हमारे यहाँ लोगों को. Great session as usual. Thank you so much, and I'm glad that you people joined in. It was lovely having you AI for Excel. AI for Excel ढूंढे, आपको मिल जाएगा शायद. उस पे ChatGPT पे डाल के पूछ ले. जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे ना, आप ChatGPT को पूछ के देखिए आज. कि is there any AI application for Excel? बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दे. जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हो कहीं से भी, किसी भी इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर ले बस. Definitely, Hira, I'll try my best to share my recording as well. Thank you so much. Thank you very much for the lovely feedback. I'll share the packet link also. Please, if you will share your feedback over there, it would be great. क्योंकि again वही वाली बात है कि आपके feedback से मेरी अपनी बहुत सारी learning होती है. Thank you so much. Have a nice day. I'm sorry for getting you up early on the on Sunday. I know you want to enjoy yourself, rest yourself, but I'm sorry I got you over there. Thank you so very much. It was lovely having you all here. If you have any questions, you can stop. I mean, you can always ask me. अगर आपके पास कोई questions नहीं है, you are free to leave. Thank you so much.